Assalamu alaikum, and dear beloved viewers, we are back with a great game of cricket underway here at Azad Stadium, Khrew, with Khrew Premier League Edition 3rd. It's going to be Dadoo Rangers Kashmir taking on Super Star Pampore, the first semi-final of Khrew Premier League, fresh edition, latest edition. And in this all-important cricket match, toss won by Dadoo Rangers captain, and he's straight away deciding to bat first. Outcome the two openers. Let me take you through the playing 11 of Dadoo Rangers. They got Simran Singh, Jamil, and they got Amir Sofi, Sajjad Hussain, Manzoor Dar is in their lineup. They got Muntazim, they got Gawar Rashid, Bahubali, they got Amir Lepti and Hazik Butt, the captain of the team. Let me take you through the other side. There is a Super Star Pampore. They got Mir Khalid, they got Wasim Raza, they got Rob Bashir, they got Yawa, they got Zaid Lepti, they got Munir, they got Musawwir, they got Zaid Lepti, they got Sajjad Sultan, Mudassir Molvi, and you can understand that Mudassir Molvi, the former Ranji player, he will be also playing for Super Star Pampore. Toss won by Dadoo Rangers, and their captain deciding to bat first. Out come the two openers, and as per the shiny Super Star Pampore is concerned, they are dispersed out quite a bit, and they got the likes of Sajjad Sultan, Wasim Raza, Mudassir Molvi, big names. And it's going to be high octane coming up, beloved viewers. We are going to my colleague next to me in the com box, Mr. Sheikh Nazir in Hindi, and I would definitely love to welcome my colleague in the com box, Mr. Nazir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। पहला सेमीफाइनल मुकाबला ख्रू प्रीमियर लीग सत्र 2 वर्ष 2022 के अंतर्गत, और टॉस डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। सिमरन सिंह और उनके साथ निश्चित तौर पे आदिल और शायद वसीम की अगर हम बात करें, वसीम रजा हालांकि विपक्षी टीम में खेल रहे हैं, लेकिन एक दिग्गज जोड़ी प्रारंभ करेगी। सिमरन सिंह एक अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। शुरुआती क्षणों में एक बेहतरीन विश्वसनीय मुकाबला देखने की आशंका रहेगी। बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला, और धीरे धीरे से एक शानदार सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का। दर्शकों की संख्या धीरे धीरे से अपने अपने स्थान पर प्रवेश करते हुए जैसे जैसे समय बीतेगा मुकाबले का, आशा की जा रही है कि एक अच्छी खासी दर्शक की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए आजाद स्टेडियम ख्रू में पहुंचेगी। फिलहाल हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ना जो है शुरू हो गए हैं। स्वागत करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में फील्ड प्लेसमेंट लगाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे कांटे की टक्कर का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। मनवर इन परिस्थितियों में एक बेहतरीन और विश्वसनीय खेल का प्रदर्शन करना होगा दोनों टीमों को, और एक कांटे की टक्कर का मुकाबला। यहाँ की विजेता टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। Both teams need to display that character. It isn't easy to make it to the semi-final of a tournament worthy of Khrew Premier League Edition 3rd. It tells of how big quality this tournament was, and this tournament is of great quality. And you can see that Mudassir Moli, Munib Munaf like players are playing here. Wasim Raza and all the former Ranji stars are gonna lock horns here at the center of Azad Stadium Khrew, and it tells how big this event has been. It has been a wonderful event. It has been a treat to watch, and these guys, everyone would definitely love to hop tabs this way and find out the fizzle at Kampan between the two teams here at the center of Azad Stadium. And it's going to be Mudassir Molvi, former Ranji star, who used it to bowl for in the Nats for Kings 11 Punjab, and this man is going to operate with the ball for the first time in this all important cricket match. Toss falling into the kitty of Dadoo Rangers, and their captain straight away deciding to bat first. Simran is on strike, and Vamik is at the non-strikes, and ball one, a slip is in place. But this goes, and we'll have to reload again. And Simran Singh was about to face the very first ball, but he pulls himself out of the line of the ball prior to the ball being bowled, and Mudassir Moli will need to go back to the top of his bowling mark and reload again. And this is of great quality, wonderful pictures, picturesque scenes, nice build up, and ball one is coming up. There is a slip in place. Third man back with a point, cover point, short extra cover mid off. This will ball one, but the Simoli goes and bows, and swinging away. A wide signal by umpire straight away, but that was bowled at tremendous pace, and ball
swinging outwards, and batsman standing tall onto that one, very watchful, calm, and lets it go through into the safe hands of wicketkeeper collecting that one, but that's a wide ball. So Dadoo Rangers are off the mark with that extra run. It's 1 for none in over number 1. शुरुआत हो चली है पहली पारी की। सिमरन सिंह कर रहे हैं सामना और मुदस्सिर है गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट सिमरन सिंह के लिए। चले उनकी ये गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई कोण बनाती काफी बाहर ऑफ स्टंप से। अंपायर ने इसे वाइड करा दिया। एक और अतिरिक्त रन, 2 रन हो चुका है। हालांकि गेंद अभी तक नहीं हुई है। निश्चित तौर पर दोनों गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर। दिशाहीन गेंदबाजी शुरुआती क्षण। हालांकि इन परिस्थितियों में थोड़ा सा जो है परिवर्तन करना होगा अपनी गेंदबाजी। मलिक शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं और जेके स्पोर्ट्स क्रिक बज भी हमारे साथ बने हुए डार उमी के साथ। मुख्तार डार भी इस मुकाबले का आनंद लेने। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरुआती क्षण मुकाबले के ये गेंद मुदस्सिर के फिर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस बार सटीक लाइन और लेंथ के साथ अंतिम समय में देखा वाला छोड़ा। सिमरन ने खेत सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 2 रन पहला ओवर प्रगति पर। मुदस्सिर है गेंदबाज। सिमरन सामना करने के लिए तैयार और उनके साथ वामिक का, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना है। नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं। डड्डू रेंजर्स कश्मीर की बात करें, एक दिग्गज टीम, दिग्गज खिलाड़ी, धाकड़ता उनकी बल्लेबाजी में। और निश्चित तौर पे आज एक बड़ा मुकाबला है। कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति शुरुआती क्षणों में जरूर रहेगी, लेकिन इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस बार अच्छे गेंद उछाल प्राप्त होती हुई वहां पर मुदस्सिर को पूरी तरह से वहां पर चकाया। बल्ला घुमाया जरूर था शुरुआती क्षणों में। हालांकि जिस लय के लिए जाने जाते हैं मुदस्सिर, शुरुआती क्षण है, अभी तक उस लय में देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, एक बेहतरीन पैनापन गेंदबाजी में निःशुल्क देखने को मिलेगा। जावेद अहमद हमारे साथ, प्रिंस तहसीन के साथ जाहिद मूसा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। लोन बसारत वालेकुम अस्सलाम, अपना प्यार और विचार देने के लिए। 2 रन बगैर नुकसान के ओवर में अगली बार मुदस्सिर चले। सिमरन सिंह है सामने, उनके लिए इस बार फिर अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद लगभग कंधे की ऊंचाई तक। और शुरुआती क्षणों में वाइड का इशारा वहां पर अंपायर द्वारा। जिस प्रकार का उछाल मिल रहा है विकेट से, निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है बल्लेबाजी के लिए। Of course, and batters need to stick to the basics and wait for the bad balls, and bad balls are going to come each and every time. But Mudassir Moli isn't happy with the decision of umpire on that occasion, and it was the very first dog and short delivery, pitched up delivery, but it went unlucky because umpire has signaled that 1 for the over. He's warned him, if you're going to bowl the next one, if you're going to stick to the basics again, if you're going to bowl that one, it's going to be a no ball, then it will be a free. But he isn't happy with umpire's decision on that occasion. But nonetheless, it's 3 for none. Next ball, or that one in that area of outside off, and almost near the 6th line stump, and batsman standing tall wants to cut that one, but bowled at tremendous space, and he was trying to hit that one through upside, beaten all lengths. A wicketkeeper does the rest in style. It's 3 for none in over number 1. Well, we have seen 3 wide balls coming below Weaver's way in this all-important cricket match. This is the over number 1 of inning number 1. It's 3 for none after halfway down into the first. So next ball, oh, look at that one, and I think that was a ploy, and he bowled a few deliveries outside off and in that Sam arc, and now that one brings that one back into the batsman to larger extent. It just missed the bat by Visca, and it was a ploy, asking him, luring him into the drive time and again, then bowling all of a sudden bowling straight on, and that taken the batter with that surprise, but luckily he gets away with it. On that occasion, it's 3 for none in over number 1. Next ball from Mudassir goes and bows, and again outside off, way outside off, and wants to cut that one, beaten all ends up again. But look at Nazir, this man, he's bowling a hurt out spell here at the center of Azad Stadium, Khrew, but he's bowling in that corridor of uncertainty, and most of the balls tend to leave the right hander, and all of a sudden he bowled only a straight one in that over, which surprised and which took him by surprise on that occasion. बिल्कुल शुरुआती क्षणों में यही एक खूबी है गेंदबाज की कि आप शुरुआती क्षणों से एक अतिरिक्त दबाव की स्थिति बनाना चाहते हैं। ये देखते हुए क्या कर रहे हैं, शुरुआती क्षणों में आप एक आध विकेट चटका सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके हित में फैसला आ सकता है। अच्छी गेंद इस बार, हालांकि तिरछे बल्ले से उसको दिशा देना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, और प्रशंसा की सभी क्षेत्ररक्षकों ने वहां पर विकेट कीपर और गेंदबाज की। ओवर पूरा, पहले ओवर समाप्ति। 3 रन डडू रेंजर्स कश्मीर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। निर्णायक सेमीफाइनल
सेमीफाइनल मुकाबले में और आजाद स्टेडियम क्रू इस फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ बेहतरीन शुरुआत मलिक जुल्फी बशारत अकबर वानी के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें दोनों टीमों के निश्चित तौर पे एक बेहतरीन वातावरण में दोनों टीमें एक दूसरे के विपरीत इस समय मुकाबला खेल रहे हैं। डडू रेंजर्स कश्मीर में सिमरन सिंह खेल रहे हैं, जमील, आमिर सोफी, सजाद हुसैन, मंजूर डार, इरफानुल हक, मुंतजिम, गौहर रशीद, आमिर लेफ्टी, हाजिक और सिकंदर। ये है प्लेइंग 11 अगर बात करें डडू रेंजर्स कश्मीर की। और दूसरी ओर बात करें सुपरस्टार पाम्पोर की तो मीर खालिद, वसीम रजा, रऊफ बशीर, यावर, जाहिद लेफ्टी, मुनीर, मुसव्वर, जाहिद लेफ्टी, सजाद सुल्तान, मुदस्सर मौलवी और मैनी ये खेल रहे हैं। इस बार नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अच्छे खासे उछाल प्राप्त होती है, लगभग कंधे की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। तो एक रन और अतिरिक्त के साथ ही 4 रन। अभी तक बल्ले से कोई रन नहीं आया है, निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंदबाजी। और इस बार रऊफ है गेंदबाज, हालांकि मुदस्सर और रऊफ ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है सुपरस्टार पाम्पोर की ओर से। यूनिस मकबूल, वानी जहूर और अबू साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। खान फेरोज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। समर्थन देते रहिए, सहयोग देते रहिए और जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभव प्रयास करता हुआ आप तक सीधा प्रसारण लेकर के पहुंचने की। फिलहाल दूसरा ओवर प्रगति पर 4 रन बगैर नुकसान के वामिक है सामने। और इस बार ये गेंद रूप की अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे, पहली गेंद और पहला रन संभवतः बल्ले से आता हुआ। इस गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच दिया, तिरछे बल्ले के साथ 1 रन पूरा किया। 1 रन और 5 कुल योग 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद डडू रेंजर्स कश्मीर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। निर्णायक पहला सेमीफाइनल मुकाबला ख्रू प्रीमियर लीग सत्र 2 वर्ष 2022 के अंतर्गत। और आजाद स्टेडियम ख्रू इस समय गूंजता हुआ, दर्शक धीरे धीरे से प्रवेश करते हुए मैदान में एक संघर्षपूर्ण और आकर्षक मुकाबले का आनंद लेने के लिए। मुदस्सिर गुल्ला हमारे साथ, चपात वानी के साथ सजाद हाशिम और आमीन बख्श इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद रूप की इस बार हालांकि सफलता मिली, लेग स्टंप पर गेंद विकेट कीपर से छोटी निकल गई, सीमा रेखा से बाहर। ये लगा जस्ट मुखारा चौका, पहला चौका बल्ले से निकलता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे जा पहुंचा है 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। रमनदीप हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सूचना और विचार देते हुए। तारिक 20 मुकाबले का आनंद ले रहे हैं तारिक डार के साथ। शाकिर नजीर और गुरु वानी मंजूर भी वालेकुम अस्सलाम अपना प्यार और विचार देते हुए। एक आकर्षक संघर्षपूर्ण मुकाबला डडू रेंजर्स कश्मीर बनाम सुपरस्टार पाम्पोर के विरुद्ध। यह मुकाबला 9 रन डडू रेंजर्स और सिमरन सिंह सामना करने के लिए तैयार रऊफ की अगली गेंद का। राइट हैंड सिमरन के लिए ये गेंद बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, बल्ला जरूर चलाया, हालांकि तिरछे बल्ले के साथ गैप का इस्तेमाल करना चाहते थे, सफलता मिली नहीं और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बगैर रन के 9 रन शुरुआती क्षण है और निश्चित तौर पर शुरुआती क्षणों में एक विकेट की आवश्यकता रहेगी गेंदबाजों को। अगर दूसरी ओर बल्लेबाजी की बात करें तो संयम और आत्मविश्वास के साथ सिमरन सिंह को यहाँ पर विकेट के पास को परखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे, सिंगल्स डबल्स पे निर्भर रहना होगा, क्योंकि शुरुआती क्षणों में यदि आप विकेट गंवा देते हैं तो एक बड़े मुकाबले में अतिरिक्त दबाव की स्थिति आप पर आ सकती है। मनोवर Of course, and if you lose a wicket at the early start, and who knows, you can be down and out with the passage of time, but you need to work on the basics. Stuck to basics, hold your nerves and stay calm out in the middle. And look at that run cranking up, and it's a no ball, and it's going to be Freight number 1 coming up, and it means he was cranking up time and again. He was warned umpire prior to this one, don't bowl in that area, and he kept bowling in that area and pitched up delivery, again pitching up and bowling with consistency in that area, and again bowled that one and cranking up almost up to the head height, and umpire says it's a no ball, then it's going to be Freight number 1 into the double figures now. Dadoo Rangers Kashmir 10 for none in over number 2. We are halfway down into the second over. It is Simran Singh on strike. Freight coming up, and that's in the air. Will this run down to the boundary? We'll have to wait and watch. Yes, it makes to the fence in style. What a shot! And that run up the back foot and a punched away in style and over the long off, and that 6 brought to by just Bukhara, the first 6 of the blade of Simran Singh, the first 6 of the match. It is 16 for none, but that was in that area, standing tall, stand up and punching that one over long off for 16 for none. Next ball goes and bows, and a lot better line. Oh, chance of a run. Now we'll have to wait and watch. And Phil unable to get to the ball in time. The two batters had time in the ball, ample time in the ball to settle for a quick single. 17 for none in over number 2 with 1 ball to be bowled. 17 on the board for the loss of Nurvik and Nazir to some extent. Lost control over the ball. Rob Bashir
and given away 6 runs, and this has to some extent leveled the contest between the ball and bat here at center. अब बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे इस गेंद के बाद। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर लिया, स्टंप्स में जा लगे, दिशाहीन थ्रो नहीं कहना चाहिए ये, क्योंकि एक बेहतरीन थ्रो वहां पर स्टंप्स पे लगा, लेकिन वापस लौटना पड़ा। ओवर समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 और निश्चित तौर पे गेंद सीमा रेखा से बाहर जा चुके थे। 21 रन इस समय कुल योग 2 ओवर की समाप्ति के बाद। एमएफ हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवेस लॉन के साथ आशिक यतु भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। सोफी इशफाक भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यार और विचार देने के लिए। 2 ओवर पूरे। डडू रेंजर्स कश्मीर का स्कोर 21 बगैर नुकसान के। सिमरन सिंह और वामिक की जोड़ी बीच मैदान में प्रारंभ कर चुकी है डडू रेंजर्स कश्मीर की ओर से। और वहीं पे सुपरस्टार पामपोर की अगर बात करें तो 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आज गेंदबाजी प्रारंभ की थी मुदस्सिर ने, और उनका सहयोग दूसरे छोर से किया था रऊफ बशीर ने। मुदस्सिर एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा खोल मिलाकर पारी का 30वां ओवर लेकर तैयार, और सामने रहेंगे सिमरन सिंह। सिमरन सिंह जो इस समय 11 पे नाबाद है, 11 गेंदों का सामना किया। वामिक ने 5 बनाए हैं, 2 गेंदों का सामना किया, और वर्तमान रन गति 10.5 शुरुआती क्षण, और लगातार इस समय नगाड़ों की आवाजें बजती हुई, ताशे बजाए जा रहे हैं। ये देखते हुए शुरुआती क्षण एक बड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर में अगली बार नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद मुदस्सिर की, सिमरन सिंह के लिए वापस से बाहर, गति में परिवर्तन, हालांकि बल्ला थोड़ा पहले चला, और निश्चित तौर पर गेंद चकमा देते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 21 2.1 बगैर नुकसान के। ये 3रा ओवर प्रगति पर है, और मोहम्मद मुदस्सिर संभवतः गेंदबाजी का दायित्व संभाल रहे हैं। इससे पूर्व 3 रन अब तक खर्चे हैं उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी शुरुआती क्षणों में, और एक तालमेल का परिचय देना होगा दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल जबल से स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान, और तब जाकर के आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सईद रजवी हमारे साथ, दिलबर रियाज भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुदस्सिर चले, सिमरन सिंह सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, हालांकि अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद पैड पे लगी, 1 रन पूरा कर रहे हैं। उस और खिलाड़ी आ रहे थे जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करते, हालांकि उनके हाथ से छिटकी गेंद, 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 2.2 के बाद आजान हो रही है। सजा पागी को सजा ज्यादा इतना ज्यादा थोड़ा इतना ज्यादा
आजान के समय के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और इस समय स्थिति 3 ओवर की समाप्ति 28 बगैर नुकसान के। और रोहित कुरैशी हमारे साथ बने हुए हैं, फरीद चौहान, साहिल तारिक और मकबूल हुसैन भी बहुत बहुत धन्यवाद। खान फैसल अपना प्यार और विचार देने के लिए बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। एक संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का, जो कि ख्रीव प्रीमियर लीग सत्र 2 वर्ष 2022 का पहला सेमीफाइनल सुपरस्टार पाम्पोर और डडू रेंजर्स कश्मीर के विरुद्ध चलता हुआ। कश्मीर की टीम ने, डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अब तक का 3 ओवर में 28 रन बने हैं बगैर नुकसान के। वामिक और सिमरन सिंह की जोड़ी बीच मैदान में, और नई गेंद से आज मुदस्सर ने शुरुआत की थी गेंदबाजी में। उनका सहयोग किया था रऊफ बशीर, लेकिन रऊफ को हटा लिया गया है और उनके स्थान पर एक नए गेंदबाज का मुनीब मनाफ संभवतः, जी हां, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज परिवर्तन के तौर पर कप्तान द्वारा उन्हें याद किया गया है। तो देखना है अब किस प्रकार से यहां से प्रयोग करेंगे। हालांकि मात्र 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और ऐसे में नई गेंद से क्या वो लाभ ले सकते हैं। मुनीब मनाफ इन परिस्थितियों में साझेदारी को तोड़ने में सक्षम रहते हैं और आज शायद उसी कारण कप्तान ने उन्हें याद किया। 28 बगैर नुकसान के चौथा ओवर प्रगति पर पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद सिमरन सिंह के लिए, जगह मिली, हवाई रास्ता, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद स्टेडियम से जा बाहर। ये लगा जस्ट बोखारा छक्का और पहली गेंद पर वहां पर स्वागत किया मुनीब मनाफ का सिमरन सिंह ने और इस छक्के के साथ ही कुल जोक पहुंचाया 34 रन 28 इससे पूर्व 3 ओवर में और 34 जा पहुंचाया 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। सिमरन सिंह बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय बीच मैदान में। क्या लाजवाब शुरुआती क्षण और ऐसे में संयम आत्मविश्वास के साथ 3.134 डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। एक निर्णायक, संघर्षपूर्ण और आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ आजाद स्टेडियम ख्रू इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ निश्चित तौर पर एक अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए यहां पहुंची है। धीरे धीरे से दर्शक लगातार नेटवर्क की सुविधा न होने के कारण कुछ इश्यू जरूर आ रहे हैं नेटवर्क के, और ऐसे में हमारा संपर्क आपसे टूटता हुआ क्षमा चाहेंगे क्योंकि नेटवर्क की सुविधा हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे में लगातार जो इसमें दिक्कत आ रही है उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर हमारे दर्शकों में भी। फिलहाल 34 पे 1 3.5 और आमिर सबते नए बल्लेबाज आए हैं। वहां में 11 पे नाबाद सिमरन सिंह आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। मुनीब मनाफ ने वो सफलता दिलाई ओवर की अगली गेंद देकर के। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर के कलाइयों के सारे तिरछे बल्ले के साथ मोड़ा उस ओवर खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। ओवर पूरा हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 1 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते। एक आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में, पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। सुपरस्टार पाम्पोर की टीम के विरुद्ध इस समय वर्तमान रन गति 8.50 और इसी रन गति से 170 तक पहुंच सकते हैं। बशीर अहमद हमारे साथ बने हुए हैं, इम्तियाज मुकामी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, मुजम्मिल मंजर और महमूद चक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का ओवर लॉन के साथ। वालेकुम अस्सलाम, अपना प्यार और विचार देने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूले। हालांकि नेटवर्क की जो दिक्कत हमें लगातार हो रही है उससे प्रयास किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे चाहते व्यूअर जाने कि नेटवर्क एक ऐसी निःशुल्क स्थिति है जो हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल लोन रमीज हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद अली के साथ। 34 पे 1 4 ओवर पूरे, नए ओवर की शुरुआत, एक और परिवर्तन और अनुभवी गेंदबाज वसीम रजा को लगाया गया है। तो देखना है वे किस प्रकार से यहां से गेंदबाजी करेंगे चौथे गेंदबाज के रूप में। देखना है क्या वो यहां से इस साझेदारी को तोड़ने में सक्षम हो पाते हैं अथवा नहीं, क्योंकि 4 ओवर में मात्र 34 रन बने हैं। 1 विकेट जरूर मिली है। वसीम रजा पहले गेंद बाएं हाथ से, इस बार स्कोर निकाला, बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, हालांकि सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन जरूर पूरा किया और निश्चित तौर पर 1 रन से संतुष्ट। 35 4.1 के बाद आमिर और वामिक की जोड़ी समय बीच मैदान में। रेहाल बिलाल नायक हमारे साथ बने हुए हैं बशीर अहमद के साथ, और शाहिद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आमिर लेफ्टी जो कि सामना करने के लिए तैयार, खाता खोलना है। वामिक के समय 12 पे नाबाद 7 गेंदों से। वसीम रजा के हाथ में है गेंद, एक गेंद कर चुके हैं। 1 रन 35 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर। पावर प्ले इसमें प्रगति पर है और निश्चित तौर पे पावर प्ले का अच्छा खासा इस्तेमाल गेंदबाजी ने किया है, क्योंकि एक सफलता जरूर उनको मिल चुकी है। 35 रन जरूर बने हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट सिमरन सिंह की मिल चुकी है सुपरस्टार पाम्पोर की टीम को। इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे आती हुई इसको निकाला, पीछे खिलाड़ी है तैनात सीधे उनके हाथ में, उनको भेद नहीं पाएंगे। 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर और निश्चित तौर पर 1 रन और 1 रन के साथ ही कुल योग 36 डडू रेंजर्स कश्मीर 4.2 के बाद 1 विकेट के नुकसान पे।
36 for the loss of 1 after 4.2 balls over number 5. And Wasim Raza brought into the attack and is operating from combox and from roadside end. Mohammad Ali and Naseeb, then Pirimo and Haris, then we got Bilal Daro. Next one, camps back and on drives that and straight down towards the long on. Will get another single, and with that single score propelled to 37 for the loss of 1. We are in over number 5. This is the mandatory power play on. Field restrictions are on, and barring 2 all are bound to stay inside 30 yard, and it's because of that Simran were taking full toll of each and every ball, and he was trying to go off to the Pacers, and in that process he lost his wicket. It's 37 for the loss of 1. Thank you Tantri, Shahid Hamsafar and Adil Kumar. Then we got Firoz Butt and others. Thank you. 37 for the loss of 1. Toss won by Dadoo Rangers Kashmir captain Hazik Butt, and is straight away without any hesitation deciding to bat first. And if we look at the conditions, and did the conditions dictated the terms, and I don't think so, because they straight away decided without any hesitation and without knowing other things and the conditions around the park today. Lon Sami, thank you. It's 37 for the loss of 1, and next one to the left-hander, and left-hander with a full stride and gets right behind it and offering the bat face, quite middling that one on to the upside for no run. 37 for the loss of 1. Next ball from left-arm spinner, turning it into the batsman, and fair batsman punching that one, but straight a short extra cover. Fielder well inside the 30 yard, and he picks it up, sends us in the return, and there is no possibility of run. 37 for the loss of 1. Over number 5. Last ball goes and bows. Oh! Appeal for stumping and given. And Amir Lapti was in all sorts of trouble, and he's smiling there, but he will have to walk back to the pavilion. The big fish caught in the net. It's a big breakthrough, and the second blood is down. Batsman and number 3 has to walk back to the pavilion, and that polar wicket brought to you by just Bukhara. It's 37 for 2, and this is the Sam Amilapti. May I remind my dear colleagues on JK Sports Time, and my dear fellow commentator here in the combox too, Nazir, this is Sam Amilapti, who scored 2 consecutive hundreds in JKC tournament, but today got undone with that beauty from Wasim Raza, but credit goes to the wicketkeeper. It's about that combo. The bowler and the wicketkeeper does the trick, and knocking him over, and he has to walk back to the pavilion in the form of stump out. मुनव्वर, एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज अगर गेंदबाजी की बात करें सुपरस्टार पाम्पोर की, कमाल की गेंदबाजी और फील्ड अनुशासित गेंदबाजी, जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर अगर शुरुआत से बात करें, तेज गेंदबाजी की बात करें, नई गेंद का प्रयोग जो मुदस्सिर मौलवी और उनके साथ रऊफ ने किया था, तो अच्छी खासी उछाल मिल रही थी, और उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। एकदम कप्तान ने हटा लिया और अपने स्पिन गेंदबाजी आक्रमण को यहाँ पर आजमाना, उन्होंने जो एक कहना चाहिए एक दांव खेला, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बल्लेबाजों को फंसा। निश्चित तौर पे कमाल की गेंदबाजी, विकेट टू विकेट, स्टिक, लाइन और लेंथ के साथ, जिसके चलते खमियाजा भुगतना पड़ा डाडू रेंजर कश्मीर। Good decision by captain today and the management. Credit goes to the entire management, sending this man at number 4, Amir Sofi, because he is having a lot of beauties in this man. He's a beautiful player, and you know that he tends to stick to the basics, and he keeps rotating that strike, and he keeps wickets intact from one end, and he's not gonna throw his wicket away. But yeah, you can undone him with the beauty, but to larger extent we can say that he hardly makes any mistake, because he's a player of different caliber and class. But now good decision today, sensible decision, sending him and promoted him up the order today. Last time yesterday at Panditpura, they missed the trick of sending this man up the order. He was sent at number 11, and it was all over for Dadoo Rangers. Then they're at Panditpura and they're out of that event. But today it's a different game day. It is the second semi-final in 2 days, on consecutive days for Dadoo Rangers. It's 37 for 2. But now Amir Sofi and Vamik both need to stick to the basics, understand that they're batting first. They need to give a solid target to chase for Shining Star Pampore, and that one, it is Super Star Pampore to be precise. Oh, shot for, and that Weber Shai comes in to see what could have been chance and what could have been wicket number 3 in the form of run out, but thrown away, and that opportunity gone bagging on that occasion. 37 for the loss of 2. We are in over number 6. Last over of the mandatory power play, but Munim Munaf, another beauty with this man. Munim Munaf is straight away among the wickets again. He has picked up that wicket.
हाँ बिल्कुल, 37 पे 2, 5.1 मुनीब मुनाफे गेंदबाज। और देखना है किस प्रकार से वे गेंदबाजी करेंगे। वामिक के बाद 13 पे नाबाद, वामिक के लिए अच्छी गेंद, इस बार लेंगे सबसे बाहर, विकेट कीपर भी चौके और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। और चौका आता हुआ निश्चित तौर पे और जस्ट बुखारा, और इस चौके के साथ ही 41, 2 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद शाजिया भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सारू के साथ जुनैद अब्बास और यूनुस इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप डिजिटल स्टार के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं, प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान के। दादू रेंजर्स कश्मीर 41 पे 2, 5.2 के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्टार पांपोर के बाद 2 दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। सिमरन सिंह और उसके बाद दूसरे बल्लेबाज, इस बार अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद मिडल की लाइन में उछलती हुई कंधे की ऊंचाई तक सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में अच्छा प्रहार कंधे का इस्तेमाल किया था वहां पर मुनीब मुनाफ ने। और स्कोर अभी भी 41 पे 2, 3 गेंदें हो चुकी है। नेक्सस याकूब बिलाल याकूब के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला ख्रू प्रीमियर लीग 17 दो वर्ष 2022 के अंतर्गत आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। शाहिद बिलाल हमारे साथ बने हुए हैं और आदिल खान भी इस मुकाबले का आनंद, आर्यन आमिर नदीम के साथ शिराज भी हमारे साथ बने हुए। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, बाप लिया, निकाल दिया, कोई खिलाड़ी उस और नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये लगा जस्ट बुखारा चौका, और इस चौके के साथ ही 45 पे जा पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। बेहतरीन बल्लेबाजी, हालांकि इस बार बेहतरीन तरीके से संपर्क हुआ। मलिक तजम्मुल अली, बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। आरिफ खान और जावेद भट्ट, अजीन आस्टिन्स और खान मंसूर भी हमारे साथ बने, बहुत बहुत धन्यवाद। नादिम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मुनीब मुनाफ सामने है वामिक। ये गेंद अच्छी गेंद, हालांकि खेलना चाहते नीचे रही, समझ नहीं पाए, गेंद चकाते हुए बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय तक गेंद पे नजरें लगानी होगी, उसके बाद स्ट्रोक्स लेना होगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है दादू रेंजर्स कश्मीर की टीम, और ऐसे में यहां से अतिरिक्त जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। और दूसरी ओर गेंदबाजी की बात करें, सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं। शाहिद बिलाल हमारे साथ, एडी आदिल इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदिल भाई अपना प्यार और विचार देने के लिए। मुनीब मुनाफ इस बार अच्छी गेंद आवश्यकता के कल्याण में, अब मुश्किल उसको खोजकर निकाला जरूर, पीछे खिलाड़ी ने शानदार क्षेत्ररक्षण किया वसीम रजा, और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण है, निश्चित तौर पे कुछ रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 1 रन और खाते में, ओवर पूरा हुआ, पावर प्ले समाप्त 46 पे 2 दादू रेंजर्स कश्मीर की टीम। On bad score after the completion of 6 overs, 36 balls, yielding 46, but they lost 2 wickets, and in terms of wickets column, and they lost 2 up front, and they needed to keep wickets intact, because in this sport of world and in this format you need to keep wickets intact, then you can give license to your entire side at any instant of the game, because this is all about instants, and seizing the initiative in style will mean you're in with a chance. 46 for the loss of 2 after 6 overs with 14 overs remaining. And Majid Sweets, walaikum salam, Shahid Bilal and Shiraz Khan, then Manan. Shiraz is watching from Pulwama, thank you sir. Then we got Majid Sweets, and then we got Mir and Zamir, it's like that. And then Mir Bashar, the regular viewer of JK Sports Time, I think, oh, that one kicking all of a sudden, and spinner bowling that kind of a delivery, Nazir, it is surprising element, and it is to surprise the batter, and it will catch and caught the batter with that surprise. And look at that one, after all of a sudden a spinner bowling with hardly of 75-80 kilometers per hour, then all of a sudden one ball kicking and cranking up almost up to the chest height, all of a sudden Rafivani and then Manan and Shahid Bilal, thank you. Well, Nazir, your comments about that, the ball kicking up the surface all of a sudden? देखिए, अगर वसीम रजा की बात करें, उनके पास अच्छी खासी रफ्तार है, हालांकि स्पिन गेंदबाज है, लेकिन बेहतरीन तरीके से मिश्रण करते हैं, और अचानक से एक तेज गेंदबाज उन्होंने फेंकी, और कुल मिलाकर इस गेंद के चलते वहां पर चकमा जरूर दिया था। अगली गेंद पे 1 रन, 47 पे 2, 6.1 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। खान मंसूर हमारे साथ बने हुए हैं, और अफवाज अहमद भी बट इकबाल के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। अगली गेंद को निकाला उस और खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन चहलकदमी करते दोनों
बल्लेबाजों ने। वामिक और आमिर सोफी की जोड़ी बीच मैदान में, माजिद शफी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वालेकुम अस्सलाम अपना प्यार और विचार देने के लिए। 48 पे 2, 6.2 के बाद बट इकबाल हमारे साथ बने हुए शाहिद बिलाल के साथ। वजीर रजा है गेंदबाज, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी गेंद लेग स्टंप पर मोड़ा उसको और काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी क्षेत्र रक्षक को जब तक वे गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। गेंदबाज वसीम रजा के पास पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, 1 रन बटोरने का 49 पे जा पहुंचा दिया डैडू रेंजर्स कश्मीर का। खान राजा हमारे साथ बने हुए, वालेकुम अस्सलाम। और डोडा से लौटे हैं, खूबसूरत आवाज कश्मीर क्रिकेट जगत की। और इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है उस और खिलाड़ी सीधे उनके हाथ में, और एक ही रन से वहां पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया वहां पर बल्लेबाज को। 50 रन डैडू रेंजर्स कश्मीर के पूरे होते हुए 50, 2 विकेट के नुकसान पर 6.4 के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते निर्णायक पहला सेमीफाइनल मुकाबला ख्रू प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत और आजाद स्टेडियम ख्रू से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। 9 नंबर की जर्सी वसीम रजा, इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप की शेप में थोड़ी सी टर्न होती हुई, हालांकि खिला रन लेना चाहते थे वहां पर सीधे थ्रो विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि गिलियां भी खेलती लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। वैली बॉयज क्रिकेट क्लब का फौरा बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजार अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम। शाह ताहिर और ओबर असद शाहजैन बाबू के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम और कोफियन स्टेशन रियल एस्टेट पामपोर, फैशन फीस्टा एंड स्पोर्ट इंडिया, धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण निर्णायक सेमीफाइनल जो कि पहला सेमीफाइनल आज इस मैदान में खेला जा रहा है। कुरैशी इकबाल और शबनम मुजफ्फर के साथ शिराज खान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। एजाज अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। 7.29 इसमें वर्धमान रन गति, ओवर 7 पूरे हो चुके हैं 51, 2 विकेट के नुकसान पर। और शाहिद महबूब हमारे साथ बने हुए हैं। मीर सैफ शाह ताहिर के साथ शारिक अहमद और इरफान मजीद के साथ वहीद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं आकर लेफ्टी के साथ। नए ओवर की शुरुआत मुनीब मुनाफ पारी का 8वां ओवर पहली गेंद लेकर के तैयार वामिक के लिए। इस बार अच्छी गेंद स्टंप पे खेला जरूर सीधे बल्ले से सम्मानजनक रूप से बैट और पैड में ला कर गए, हालांकि एक कदम आगे निकाल कर रक्षात्मक रूप से रोका जरूर, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 51 पे 2, 8वां ओवर प्रगति पर एक गेंद हो चुकी है और आरजेबी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। शौकत अहमद बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। शबनम मुजफ्फर, मीर मुजम्मिल, वालेकुम अस्सलाम। मुनीब मुनाफ है गेंदबाज, हालांकि अच्छी और सटीक लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म है गेंदबाज, इस बार अच्छी गेंद पे स्टंप से, और इस बार तिरछा देना चाहते, गैप का इस्तेमाल करना चाहते थे। और ऑफसाइड का अगर हम बात करें तो एक कॉर्डन लगा के रखा है इस समय क्षेत्र रक्षक का, निश्चित तौर पर उसके अनुकूल इस समय गेंदबाजी होते हुए कमाल का प्रदर्शन, बुद्धिमानी का परिचय कप्तान द्वारा, और निश्चित तौर पर अभी तक जो जाल बुना है उसमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिली है सुपरस्टार पामपोर की टीम को। बट बासित हमारे साथ बने हुए हैं, नवीद लोन, जावेद हुसैन वानी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं ताहिर अहमद के साथ। मुनीब, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, जगह मिली, आने का इंतजार किया, गेंद के निकाला उसको, पीछे खिलाड़ी सीधे उनके पास, जब तक वे फील्ड करते पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बटोरने का। 52 पे 2, 7.3। तारिक जान, मुदस्सिर रमजान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुसैब जावेद इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और इन परिस्थिति में 7.3, हालांकि 2 विकेट खोए हैं। मनोवर इन परिस्थिति में अगर एक साझेदारी धीरे धीरे से हालांकि पनप रही है। अगर बात करें आमिर सोफी और वामिक के दौरान, दोनों दिग्गज बल्लेबाज हैं। वामिक काफी लंबे समय से बीच मैदान में डटे हैं, उनकी निगाहें जम चुकी हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आने वाले 6-7 ओवर में ये साझेदारी और ज्यादा बढ़ती है तो आखिरी के जो ओवर हो उनमें आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक विशाल लक्ष्य जो है विपक्षी टीम को दे सकते हैं। Of course, they need to keep wickets intact. 52 for 2 after 7.3 balls halfway down into the 8th over. That's absolute gorgeous off the back foot. And no need to run for those. Bisecting cover and point into the fans for 4. Brought to you by Just Bukhara. And score propelled to 56 for 2. But that was gorgeous. Looking in sublime touch again. And promoting up the order today. Dadoo Rangers does well. And sent him at number 4. And he has to live up to his expectation. Dheeraj Wadhwa is watching, thank you. Love from Anthem. And the bat on strike on the occasion. Bisecting cover and point down to the boundary for 4 in style. 56 for 2 in over number 8. Next ball, oh, handsome again. But there is protection, just a single there. Oh, it's going back for the second and pushing for the second Indian, made it look easy. It's 58 for the loss, 56 for the loss of 2. S. Ali Rizvi, then Rafi Wani, and we got Isaaqul Haq and Moin Mir and Idu Idris and Sheikh Adil, then Gulzar Ahmed. Walaikum Salam, brother. 58 for 2 in over number
8 of an innings. Last ball remains to be sent down and bowled by Munib Manaf, and he has to bowl their last ball. Liaquat Ali and Irshad Ahmed and Gulzar. In goes Munib to Amir. Oh, flicked away in style. Oh, again. Oh! And he manages to get back in time, and he manages to pounce onto the ball in the second attempt and keeps the scoring down to just a paltry run. And with that, single score moves on to 59 for the loss of 2 after 8 overs. Well, it's overcast today here at the centre. Not clear skies. Sun has gone behind the clouds. Dadoo Rangers winning the toss or batting first. They're 59 for 2. GM Ratha, the regular Mir Bashart. Then we got Abu Shahid, Mahbub, and then we get Moin Ibn Farouk and Manzoor Sheikh. Thank you. And Ehsanul Haq is watching the live broadcast. 59 for the loss of 2. Well, we were just talking about that partnership is going to be key, and partnership can make that dream work happen. But today, at this crucial juncture, from one end they need to keep wickets intact, and they need that partnership badly. From other end, the bowling side, they need to keep bowling in the right areas. Nothing wrong with the scorecard so far, because they are 59, no doubt, but they are 2 down after 8 overs. It means quite a lot, and the bowlers need to be praised. And the way they bowled today, and the way they kept things tight, and it wasn't all about all guns blazing. It was all about the discipline from both the teams, be it the bowling and be it the batting. Both the teams shown that discipline to a larger extent. But in the meantime, Nazir, if they are to set a big score in front of Super Star Pampore, they need a partnership badly for next, at least from 8 till 14th over, and at least they need 40 plus runs without any loss, and then they can really offer some big innings. And that one, oh, chance of a run out, and we'll have to wait and watch. And case sent to leg umpire, not upstairs to be precise, but umpire says he's home, so no harm done there. Cheeky and quick run fetched by the 2 batters, and it was quick and cheeky single, and it's 60 for the loss of 2 after 8-point delivery. We are in over number 9, ball number 2 coming up. On strike will be Wamek and Amir Sofi and Wamek out in the middle, and both the batters knowing the fact that if they manage to stick to the basics for next few overs and stitch a partnership of 30-40 runs, and they can definitely give themselves a chance to go for that kill and the full Monty. 60 for the loss of 2 after 8.1 ball into the 9th over. And this broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports India Fashion Fiesta, Shining Star Pampore, and amateur multi-brand fashion store. Oh, punched, but straight back to the ball for no run. And look at Wasim Raza, he was trying to improvise, he was trying to run him out, but batter was agile as Cat. He managed to get back to the crease in time. So now I'm done. 60 for the loss of 2 in over number 9. Last ball and third ball coming up, to be precise, not lost, is going to be ball number 3. Oh, that handstand, the stall camp was back and punches that, and pull up punch. Oh, look at the fielder, he puts in the full length dive. What could have been a boundary? A limit is the scoring down to brace. 62 for the loss of 2 after 8.3 ball. Halfway down into the 9th over. 62, not bad start, and everything is in balance. But who knows which way this match is gonna change its color, and how things will change in the next pass. Oh, look at that one. We're just talking about that, and Wasim Raza. Another wicket to Wasim Raza. It's 62 for the loss of 3, and Wamek getting overcautious. He was nowhere near playing all around it and knocking him over, castled him, clean bowled. And this is the big fish caught in the net, Nazir. लगातार बैकफुट पर जाकर के जगह बनाना चाहते थे, इस बार खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बैकफुट पर जाकर के पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया, और गेंद सीधे स्टंप्स ले उड़ी। वसीम रजा को एक और सफलता मिलती हुई। कुल मिलाकर डडू रेंजर्स 62 पे 3, 8.4 के बाद वामिक आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। सिमरन सिंह भी इससे पूर्व आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, और निश्चित तौर पर शायद आमिर लेफ्टी अथवा आदिल लेफ्टी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। तो कुल मिलाकर 3 दिग्गज बल्लेबाज अब तक डडू रेंजर्स कश्मीर के लौट चुके हैं। 62 पे 3, 8.4, और वसीम रजा अब तक के सफल गेंदबाज। 10 रन देकर के 2 सफलता उनके खाते में। इस समय आमिर सोफी 10 पे नाबाद है, 7 गेंदों से अब तक उन्हें बनाया है। वर्तमान रन गति 7.15। इशफाक वानी हमारे साथ बने हुए हैं। अबू हाशिम खान भी बहुत बहुत धन्यवाद। इशफाक वानी, मुदस्सिर रमजान, मोइन इब्न फारूक इस मुकाबले का आनंद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें। जुड़ जाइए हमारे साथ डिजिटल स्टार के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। सेंड स्टार का बटन दबाना ना भूलिएगा। एक बेहतरीन मुकाबला
आजाद स्टेडियम ख्रू इस मुकाबले का नेतृत्व कर रहा है। ख्रू प्रीमियर लीग का ये दूसरा सत्र वर्ष 2022 के अंतर्गत और अंतिम चरण में यह प्रतियोगिता शानदार सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का, और निश्चित तौर पे आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला डाडू रेंजर्स कश्मीर और सुपरस्टार पांपोर के विरुद्ध खेला जा रहा है। ईदु अदरीस बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन शाहिद, आसिफ राजा और सईद अकील भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इशफाक खान हमारे साथ बने हुए हैं, नए बल्लेबाज बीच मैदान में इरफान पहुंच चुके हैं और देखना है इरफान जिस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। दायित्व रहेगा उनके कंधों पे। आमिर सोफी, हालांकि निगाहें जम चुकी हैं आमिर सोफी की, लेकिन एक बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। हालांकि एक दिग्गज बल्लेबाज है, अनुभव उनके पास अच्छा खासा। इन परिस्थितियों में किस प्रकार से गेंद बल्लेबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। हालांकि बिल्कुल बैट और पैड मिला करके उसको सम्मानजनक रूप से खेलना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद के साथ स्कोर टिका हुआ 62 पे 3, 8.5। वसीम रजा बाएं हाथ से आखिरी गेंद लेकर के ये गेंद बार फिर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति पैड पे लगी, लेकिन नकारा लेग स्टंप को छोड़ती हुई। अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। ओवर पूरा हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद डाडू रेंजर्स कश्मीर 62 पे 3। ऑप्टिमिस्टिक रिजवान हमारे साथ से बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरहान, शौकत, गाजी, शफी और ब्रांड भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण, आकर्षक, निर्णायक और कांटे की टक्कर इस समय बीच मैदान में। पहला सेमीफाइनल भिड़ंत सुपरस्टार पांपोर और डाडू रेंजर्स कश्मीर के 2 दिग्गज टीमें। हालांकि डाडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 9 ओवर में 62, 3 विकेट के नुकसान पर इरफान और आमिर सोफी की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। इरफानुल हक सबते बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जी हां, एक और दिग्गज बल्लेबाज और निश्चित तौर पे अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, लेकिन इन परिस्थितियों में एक कड़ी परीक्षा होगी इरफानुल हक की कि किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि 2 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोला है। यावर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। एक और परिवर्तन लगातार छोटे छोटे स्पेल्स में। और मनवर पिछली कुछ ओवर्स की अगर बात करें इस मुकाबले की, देखा गया जैसे ही एक विकेट मिलती है नए बल्लेबाज का आमंत्रण होता है और ऐसे में गेंदबाजी में भी परिवर्तन किया जाता है। किस प्रकार से आप देखते हैं? Very great thing for Dadoo Rangers Kashmir, and a great presence of mind to be precise, and bringing new bowler to the newcomer who just walks into the middle to crease, and it's a good ploy being used in Nazir, and I think that's a nice observation, and you were keenly observing all things around the park today. But this is a great sign that bringing new men and giving them time to operate, because it isn't easy for the newcomer who just walked into the middle and he doesn't know how the ball is going to behave with him. So it's better to bring the new man on and try. Oh, look at that run! And Sajjad Sultan, the man, he is a prolific prospect. He's a wonderful cricketer. He's quite a cricketer. He's a wonderful athlete, and look at that run. Like whale shark putting in that full length dive and diving to his left hand, Nazir, and holding on to the ball isn't everyone's cup of tea. But the ball ricocheting quite a bit. But look at the output. It was something special and acrobatic. And acrobatism at its peak there at backward point, and Sajjad Sultan, the man. But that's what I was just I keep throwing out these words time and again, and it's a great observation, and bringing on new bowlers to the newcomers to the crease, it's going to be quite some achievement, and it's going to test the temperament of both the bowler and the batter. In both the cases, it's going to be a testing time, and to live up to their expectations and to stand up and deliver for their side. It's 64 for the loss of 3 after 9.1 ball, and it's 66 for the loss of 3. We're 2 balls down into the 10th over, and after the completion of 10 we're going to be halfway down. Nazir, you were just talking about that, bringing new bowlers to the new batters. This is a good ploy, and I think it's another thing that tests the temperament of the bowlers, what they possess in the kitty for all of us, and it will definitely allow them to learn how these bowlers need to bowl under the certain circumstance when they are given the ball on a different track, not irrespective of this very match, and whenever they need a bowler at the crucial juncture, who is to give them the ball then? And it's a kind of an experiment going on, and it will definitely it will come out and handy for their side as per Dadoo Rangers of Kashmir. Kashmir are concerned. 67 for the loss of 3 after halfway down into the 10th over. Thank you for a check, and it's like that. Irfan Malik and others. Here goes pace. Oh, look at that turn. This is sheer balance and class of Amir Sofi, but can't prevent but can't beat the fielder there at extra cover, and fielder can't prevent the 2 batters from escaping
for a quick single, and Azhar Sultan, but the regular viewer, thank you for allowing and support. It means quite a lot, dear Azhar. Wherever you are, stay blessed. It's 68 for the loss of 3 in over number 10. Nazir, now from here on, they need to accelerate quite a bit, gear up a bit, and let's change your game plan. The way you're batting, now you need to change your gears and guiding it, but straight to Chan. Oh, director is gone. Look at that, Chan. And look at Ahmed Sofi. He was damn sure with that. Wasim Raza is going to hit, and he's hitting the bullseye in style. It's wicket number 4, and Dadoo Rangers lost wicket number 4, and not the way you would love to lose your wicket. And it's a quite bizarre show, and he has to walk back. Scholar Academy writes in, and thank you for allowing sport, and Jack Meron and others, thank you. But Nazir, he was stranded at halfway stage, and he knew very well that I'm a goner. Curtain is down for this man. It is Dadoo Rangers now falling apart. 68 for the loss of 4. Nazir, now they need to understand. Whoever walks in, they need to understand first. Let's have a discussion, let's have a pep talk, let's have a chat, have a mid-pitch conference, and then to take that guard and mark the guard from umpire, fresh guard, and then get ready to face the bowler. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आमिर सोफी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, विकेट के चारों ओर बेहतरीन स्ट्रोक। अब्बास डार हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद नवाज भाई। और गैप का बेहतरीन इस्तेमाल, आत्मविश्वास उनके पास कमाल का, और ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन में चौथे विकेट के रूप में आउट होकर लौट चुके हैं। 68 पे 4, 9.5 के बाद आखिरी गेंद का आना बाकी। निश्चित तौर पर इस प्रकार से एक बड़ी विकेट हाथ लगी है सुपरस्टार पापोर की टीम को। उत्साह का ठिकाना नहीं है, क्यों न हो, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण दिग्गज बल्लेबाज अब तक उनके खाते में आ चुके हैं। 4 विकेट वो अब तक प्राप्त कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अब्बास डार के साथ मुनीर भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्कॉलर्स अकेडमी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विचार देने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोग जुड़कर इस संघर्षपूर्ण आकर्षक मुकाबले का आनंद ले सके। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, वहां थोड़ा बिग बैश क्षमा कीजिएगा, ख्रू प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। इरफानुल हक और हाजिक पर टीम के कप्तान है संभवते, और देखना है आज कप्तान के कंधों पर दायित्व है, कप्तानी परिपारे। इन परिस्थितियों में टीम को संभालना होगा, किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। 68 पे 4, 9.5, आखिरी गेंद लेकर के तैयार यावर, और 4 रन अब तक दे चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन नपितुली कसी किफायती गेंदबाजी अब तक इस ओवर से देखने को मिली है। बट इब्राहिम, मीर मैक्रो और शेफानी के साथ लॉन सिराज भी चले। आखिरी गेंद लेकर के बाहर लेके सबसे बाहर उछाल लेती हुई गेंद, विकेट कीपर ने प्रयास किया, असफल। गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, उस ओर खिलाड़ी काफी लंबी तोड़ लगानी पड़ी, फील्ड तो कर दिया, अंपायर का इशारा वाइड का, तो तुरंत और खाते में 70 पे जा पहुंचा। 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी एक गेंद का आना बाकी, और लगातार लॉन सिराज स्कॉलर्स अकेडमी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विचार समर्थन देने के लिए स्वागत किया जाएगा आपका। प्लेइंग 11 आकिब फारूक का यह हमें सूचना देते हुए, और सूफी सलीम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वर्तमान रन गति 7.12 प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें 142। इशफाक डार हमारे साथ बने हुए हैं, और आखिरी गेंद लेकर के तैयार यावर। ये गेंद और बाहर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ, गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा, तो आधी पारी समाप्त, 10 ओवर की समाप्ति। 70 पे 4, इरफानुल हक 1, और हाजिक पट को खाता खोलना है। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि काफी कुछ निर्भर करेगा। इरफानुल हक की अगर बात करें, दिग्गज बल्लेबाज हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो खेलते हैं, और अगर उनके अनुभव की बात करें तो अच्छा खासा अनुभव है क्रिकेट के हर क्षेत्र में। अगर कश्मीर घाटी की बात करें, हर क्षेत्र में उन्होंने क्रिकेट खेला है, तो निश्चित तौर पे आज एक कड़ी परीक्षा होगी इरफानुल हक की। और दूसरी ओर हाजिक भट्ट की बात करें, एक और बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन इन परिस्थितियों में हालांकि दबाव की स्थिति है, 4 विकेट गंवा चुके हैं, 70 स्कोर बोर्ड पे लग चुका है, आखिर के 10 ओवर आना है। तो निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे इंग्लिश कमेंटेटर ने ये बात स्पष्ट कर दी कि यहां से एक साझेदारी की आवश्यकता है, और अगर धीरे धीरे से इस साझेदारी को सफल बनाने में सक्षम होते हैं दोनों बल्लेबाज, सिंगल जबरदस्त को रोटेट, रन गति को बढ़ाना होगा, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी, खराब गेंदों को सही नसीहत, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर आप विकेट सुरक्षित रखते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य अभी भी आप छू सकते हैं इन परिस्थितियों में। Thank you, Abbas, for your allowance. Sport is 70 for the loss of 4 in over number 11, and 10 done. Halfway stage, 70 for the loss of 4. Got to feel sorry and bad for Ahmed Sofi, and getting run out. And it was hot felting, and look at that, this man. And straight away, works that one onto the onside. Are they going to come back for the second? Sloppy field. This is not for the first time. On couple of occasions, multiple occasions,
happening from the fielding side, and again giving the two batters time in the ball to set off for a quick single. And Butt Ahmed, then Mohammad Shafi and Manzoor Ahmad Munna. Then we got Scholar Academy and Manzoor Ahmad Munna. He writes in that he wants to do commentary with Nazir sir. Thank you. It's 72 for the loss of 4, and we are in over number 11. It's Wasim Raza operating with the ball. Left arm spinner, no slip at all. There is a gully, there is a back with a point, there is short extra cover. Thank you, Ishfaq Dar. And next one, that's a good shot. Will this be the fielder? No, it doesn't. Just a single on to that one, and with that single he escapes for a quick single and giving strike back to Irfan, and Irfan has to stand up today. It's about Irfan today, and he is quite a last man standing as for the man who can really set things ablaze, and he can announce himself, and we can be in for a carnage. But this man need to live up to his expectations today and dispatch the thumping punch of his blade. And Tawseef Rahman, thank you. 73 for 4 in over number 11. Next ball. Oh, look at that one, beauty. And this man, he's a busy customer, and he is a typical customer. It isn't easy to pick this man up time and again, and this man is gonna bowl with that variety time and again. Thank you, Dar Gulzar. Here goes again Wasim Raza to Irfan ul Haq, and Haq keeps it out towards the cow point for no run. It's a dot ball. It is 73 for 4, and then we got Ishfaq Dar, and we got Mohammad Shafi and Shahid Yunus, and so he Babu like that. 73 for 4. Walaikum salam. Next ball. Oh, look at that one. Slogs that one, and that's gone a country mile. And that's 6 brought to you by just Bukhara. But that one, it's biggest of the lot. And on that occasion, long stride for Nazir, taking his left leg out of the line of the ball, then middling that one and sends it over mid wicket for 6. Huge, half a dozen, and that 6 takes the score to 79, and crowd coming alive again. It's because of his wonderful bat swing. Next ball from Wasim Raza. Oh, look at that one. And gone cheeky, gone quick, and gone for runs. 4 of those brought to by just to Bukhara. But that boundary takes the score to 83, and runs coming out of nowhere. All of a sudden with that 6, and followed up with the boundary, and now leaking runs to some extent. But they will take that, Dadoo Rangers. It hardly matters how they come. They should get runs. And whatever comes the bowling sideway, it hardly matters for Dadoo Rangers. They need runs. They're in desperate need of runs. But getting that boundary out of nowhere, it's really going to hurt, and it's going to pinch them to larger extent. मनोहर भाई, यहाँ पर अगर इरफान उल हक की बात करें, हालांकि पिछली कुछ गेंदों से आपने भी उनको लगातार कीनली ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ असहजता में थे, लगातार वो प्रयास कर रहे थे स्ट्रोक खेलने की, कभी रक्षात्मक रूप से, तो पूरी तरह से गेंद को मिडल नहीं कर पाए। लेकिन अगली इन आखिरी की 2 गेंदों में एक छक्का और चौका जोड़ने के बाद निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास लौटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास डार, अपना प्यार और विचार देने के लिए। इसी प्रकार से अपना समर्थन देते रहिए, सहयोग देते रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम को, ताकि जेके स्पोर्ट्स टाइम बेहतर से बेहतर सीधा पसंद लेकर के आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहे। शाहिद यूनिस, बहुत बहुत धन्यवाद। और इफू इरफान के साथ इरशाद अहमद नजार और यासिर शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं। 11 ओवर समाप्त। डडू रेंजर्स कश्मीर 83 पे 4, वर्तमान रन गति 7.55। इरफान उल हक 11, हाजिक बट 3 2 गेंदों से, और वसीम रजा को अब तक का 2 सफलताएं मिल चुकी हैं 23 रन देकर के। इस समय ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, निश्चित तौर पर 9 ओवर का खेल बचा है। और ऐसे में अगर बात करें, डार गुलजार हमारे साथ, शोएब वानी और जमीर नबी के साथ एजाज डार, स्कॉलर्स एकेडमी जुनैदुल इस्लाम, लॉन सोहेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप डिजिटल स्टार के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। ख्री प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत पहला सेमीफाइनल मुकाबला। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते, अब तक का 11 ओवर में 83 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और इसमें नाबाद बल्लेबाज इरफान उल हक, 1 छक्का और 1 चौका उनके खाते में जुड़ चुका है। हाजिक भट्ट उनका सहयोग कर रहे हैं, 3 पे नाबाद है 2 गेंदों से, वही 10 गेंदों से 11 रन बनाकर नाबाद इरफान उल हक काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। एक साझेदारी की आवश्यकता है, प्रयास दोनों बल्लेबाज। विवेक भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, डार एजाज, कासिम अली भट्ट, बिलाल गनई के साथ परे फारूक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार, विचार और इस प्रकार का सहयोग और समर्थन देने के लिए। बने रहिए, आनंद लेते रहिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभव प्रयास करता हुआ आप तक का सीधा प्रसारण पहुंचाने की। अहम अकील
लोन सोहेल के साथ। बट इब्राहिम भी स्थिति 11 ओवर पूरे 83 4 विकेट के नुकसान पर। और अभी तक का ये लेखा जोखा, हालांकि आखिरी के 9 ओवर बचे हैं, 20 ओवर का ये निर्धारित कोटा होगा। पहली पारी इस समय बीच मैदान में चल रही है, तो आने वाले समय में अगर 9 ओवर की बात करें, हालांकि 6 विकेट अभी भी हाथ में है, 2 दिग्गज बल्लेबाज बीच मैदान में है। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर एक साझेदार जिसकी हम लगातार टिप्पणी कर रहे हैं इस मुकाबले में, इरफानुल हक और हाजिक भट्ट में वो क्षमता है कि अंतिम के ओवर्स में वो बड़े स्ट्रोक्स खेलकर एक विशाल लक्ष्य विपक्षी टीम को दे सकते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में शुरुआती क्षणों में खराब गेंद को सही नसीहत, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति से अपने आप को छटा सके। उसमें अगर सक्षम होते हैं, आने वाले 4-5 ओवर जो है बिना विकेट खोए साझेदारी पनपती है, तो कहीं ना कहीं आप 170-180 तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी टीम, हालांकि आसान नहीं रहेगा दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना। इन परिस्थितियों में फिलहाल नसीर डार, हमारे चाहते व्यूअर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डार एजाज भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। 11 ओवर की समाप्ति 83 पे 4। डैडू रेंजर्स कश्मीर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और डार एजाज के साथ शौकत भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। आखिरी के 2 ओवर किस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ेगा, क्या परिस्थितियां, क्या रणनीति रहेगी यहां से इरफानुल हक और हाजिक भट्ट की। 83 for the loss of 4 after 11 overs with 9 overs remaining. 54 legitimate balls are gonna come, and Scholars Academy writes in something. And then we got Tausif Jabbar and Jasir Manzoor. Thank you, brother. And then we got Nadeem Duntu. It's like that, Duntu and Mir Umar. And each and every one, thank you for Allah and sport. And walaikum salam, brother. Dal Gulzar writes in. His name is Sheikh Nazir. And we got Malik Saab, alaikum salam, and Imad Zuhur. We got some time and a kind of a breather here in the count box, because it was time for the drinks break and strategic timeout. We're back on the field. Jasir Manzoor, thank you. Then Battavid and Imad and Mir Umar and others. 83 for the loss of 4. 11 overs done and dusted. 9 overs remain. Nasida writes, whenever by after a couple of days. Your soothing voice is back to please mayors. Thank you, sir. It means quite a lot, and it's quite some achievement, sir. And people like you are there to back us. Thank you, Suhana Ali. Walaikum salam. Then we get Liakada, we get Tausif Jabbar, Imad Zahur. Walaikum salam. Nasu and Asif Bashir Lawn and Soil Makbul Liakadar and others. 83 for the loss of 4 up to 11 overs. With 9 overs remaining, we'll have to wait and watch which way this match is going to go, and let's find it out. Thank you for watching from Kukarnak. Thank you, Jasir and others. Sajad lefty and in goes Pacer. Oh, good shot. Nicely done. But straight to Munib Manaf. And he keeps it down to just a run. And thank you, Jafar Salim. And with that, single score moves on to 84 for the loss of 4 in over number 12. The very first ball, hop tracker. It happens to be a hop tracker. And batsman standing tall onto that one and pulling that one. But not to perfection. Finding the man in place. Just a run. 84 for 4. Now they need to gear up a bit and change your gears. It is the high time, because you're 4 down and you need runs. Thank you, Jasir, again for your love and sport. And this time, little stride forward and then keeps it out towards the extra cover again. Munib Manaf again, busy customer on the field today. And with that, single score moves on 85. Thank you, Aftab and Imad Zuhur. Score propelled to 85 up to 11.2 balls at the cost of 4. And it's Irfanul Haq and Hazik out in the middle. Imad Zuhur, thank you. Hazik lefty and Irfanul Haq right-hander. And it's a nice combination. Thank you, Lon Bashar. The regular viewer of Jigga Sports Time is there then. He is here then. Thank you, brother. And where were you? And then we got Riyaz Ahmed Ghaziabad. Thank you for your law and sport. Then we got Tausif Rahman and Mir Bashir. Thank you, Riyasa, for your law. 86 for the loss of 4. We are in over number 12. Drifts down the leg side. Very down the leg side. And umpire signaling it's a wide. 86 for the loss of 4. As for the bowlers are concerned, they need to bowl in the right areas. Jasir, thank you. You're the regular viewer. It's quite some achievement. Thank you, sir. And thank you, Lau, for backing us on that occasion. Oh, again, a variator the pace of delivery. Arrived too late, and he was early into the shot. And it took him by surprise to some extent. And another surprising element, Nazir. But it's up to the bowlers, how you apply yourselves and how you adapt to yourselves under certain circumstances. And it means the great presence of mind, and bowlers, they need to be praised
and the way they have shown their caliber and class today, living up to the expectations and bowling in the right areas and taking pace of the deliveries and trying to vary that and bowling with the varieties, with those varieties, and this is making quite difficult for the two batters out in the centre. Asif Rasool, Dar and Khan Shabir and others. Thank you. Oh, look at that turn. It was a change of pace, but it's a no ball. It's like that. It had its insult to the injury, to be precise. And getting away with it, and batter was unable to put bat on to Shaidian. Thank you. But all of a sudden it's a no ball, and now it's going to be Freud coming up, Nazir. जी बिल्कुल, नो बॉल का इशारा वहां पर पिछली गेंद पर 88 पे 4, 11.3 और शाहिद यूनुस पट तौहीद मीरान मंजूर के साथ यावर चले सामने वाले चोट से। राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहर अपने आप को संतुलित किया, हवाई रास्ता ऑफिसम से बाहर निकलती हुई गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। ये लगा जस्ट बुखारा छक्का। क्या करारा स्ट्रोक खेला वहां पर इरफानुल हक के बल्ले से निकलता हुआ ये दर्शनीय स्ट्रोक, और पहले से कमेंट हो गए थे स्ट्रोक्स पे। अपने आप को संतुलित करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक 94 पे जा पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर 11.4 के बाद। बट तौहीद भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। हालांकि साथी खिलाड़ी वहां पर गेंदबाज यावर के पास गए, कुछ मंत्रणा की कि किस प्रकार से आपको गेंदबाजी करनी है। इरफानुल हक को आप ऑफ स्टंप पर इस प्रकार से जगह नहीं दे सकते, क्योंकि एक धाकड़ बल्लेबाज हैं और ऑफ साइड की अगर हम बात करें उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, तो ऐसे में इन परिस्थितियों में एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। खुर्शीद वानी मीर हाजिम के साथ यावर चले इरफानुल हक के लिए ये गेंद, उस बार फिर आप सबसे बाहर, हालांकि समझ नहीं पाए वहां पर गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तों में विराम करते हुए 94 पे 4, 11.5 आखिरी गेंद का ना बाकी 12वां ओवर प्रगति पर इरफानुल हक और हाजिक बाट की जोड़ी समय बीच मैदान में। हाजिक 5 4 गेंदों से, इरफानुल हक का 18 14 गेंदों से 7.94 प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन गति है, और इस रन गति से 159 तक पहुंच सकते हैं। एडी आदिल हमारे साथ बने हुए हैं, आदिल मुस्तफा भी हमारे साथ बने हुए क्रिकेट टाइटंस के साथ। इस ओवर में अगली बार यावर की गेंद, इस बार खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद बैट पे लगने के बाद पैड पे लगी, रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। ओवर हुआ पूरा 12 ओवर समाप्त 95 पे 4। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। 8 ओवर का खेल बचा है, 48 निर्धारित गेंदें, हालांकि 6 विकेट हाथ में है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजी समय बीच मैदान में अगर बात करें इरफानुल हक और उनके साथ समर्थन टीम के कप्तान हाजिक बाट, एक बेहतरीन बल्लेबाजी, दायित्व उनके कंधों पर, कप्तानी परिपारी और सहयोग देना होगा, वहां पर एक एंड पकड़े रखना होगा। और इरफानुल हक का दूसरे चोट से जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं, सफलता भी मिली है, लेकिन विकेट को सुरक्षित रखते हुए खराब गेंदों को सही नसीहत देनी होगी, और कहीं ना कहीं यहां से रन गति को थोड़ा सा तेज करना होगा विकेट को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि विपक्षी टीम की अगर बात करें 170 180 निश्चित तौर पर, और अगर मैदान की बात करें मनवर तो 180 190 जो है इस विकेट पे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरुआती क्षणों में अगर आप एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल पहली पारी 95 पे 4, 12 ओवर पूरे 13वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और देखना है गेंदबाजी का दायित्व किसे दिया जाता है। इरफानुल हक 19 पे नाबाद, हाजिक 5, कुल योग 95। अरशद अहमद हमारे साथ बने हैं, आदिल के साथ शाहिद शौकत और सजाद खान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, 13वां ओवर पहली गेंद लेकर के। ये गेंद हक के लिए है, और इस बार हक ने खेला, हालांकि ताकत नहीं दे पाए स्ट्रोक में, ऊपरी सिरे पे लगने के बाद उस और खिलाड़ी 1 रन पूरा कर रहे हैं, और इरफानुल हक को 1 ही रन मिलेगा 96 पे 4, 12.1 के बाद। आशिक लोन गाजियाबाद लंगेट से बहुत बहुत धन्यवाद आशिक भाई। उमर के साथ अरमान शारिक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा आप तक पहुंचता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम, आरको फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपोर, फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का। इस समय स्थिति पारी का 13वां ओवर, 1 गेंद हो चुकी है, और गेंदबाजी रऊफ बशीर के पास 19 रन अब तक खारिज कर चुके हैं, सफलता उनके खाते में नहीं आई है। बाएं हाथ के बल्लेबाज बाट के लिए, और इस बार हाजिक ने खेला, हालांकि स्ट्रोक लेने के बाद गेंद वही पास में लुढ़की, 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और निश्चित तौर पे 1 रन और 97, 4 विकेट के नुकसान पर। वातावरण कमाल का, हल्की हवा मैदान पे चलती हुई, और ऐसे में एक बेहतरीन वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, और बीच मैदान में संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती। 97 for the loss of 4 in over number 12.
It's 13th in progress. And thank you, Aryan. Writes in something. It's Erejan writes in Walaikum Salam. And then we get Wani Manan and Ubu Zarar and Perez Sajad. It's 97 for the loss of 4 in over number 13. 2 balls down into the 13th over. Now, I believe that both the batters, if they carry on and if they gear up a bit and if they change their gears, I believe that 170 plus is still on course. And look at that, and it was over pitch to 1, but away outside off, and Rob Bashir is astonished to know that. He looks back in disbelief, but umpire says it's a wide ball. It's a big wide. 98 for the loss of 4. Thank you, Ashik Lon, one of my brothers, and thank you. It's 97 for the loss of 4. And it is Shahnaz Sam writes in. Send 75. Thank you for your love and sport. 98 for the loss of 4 after halfway down into the 13th over. Good shot. Oh, look at that. It was a yes-no like situation out in the centre, but sensibly sent back and he responded in time. So now I'm done. Score remains 98 for the loss of 4. Thank you, Ramiz Dar. And it has been right. What about whether he isn't perfect today? But we definitely love to pray to mighty Lord that Ran will stay away and we won't get any curtailment. Prince Shakir and Ghulam Nabi Dar. Then we got Ijaz Butt and all other beloved viewers. Thank you. It's 98 for the loss of 4. Team share 2 runs share of Team 100 Dadoo Rangers Kashmir DRK. It's Ahmad Nazir and Adil Ibn Maqbool. Here goes and bows. Oh, look at that, and another beauty. What a delivery, and batsman just managed to keep that one down towards the third man. Just around 99 for 4, but that was a beauty. That was superb delivery bowled by Rob Bashir, and producing in between some beauties. It is to irritate and annoy the batters to large extent, and it is taking them by surprise, and it is provoking them to play the ball on merit. And next ball, oh, look at that one, but gently worked away. Nice shot. Supple wrist is coming into play, but can't beat the fielder, and the fielder too can't prevent them from fetching that quick single, and both the batters settle for a single. 100 comes up for DRK in over number 13. 13 done. It's 100 for the loss of 4 after winning the toss, batting first. 100 for the loss of 4 in the first semi-final match of Khrew Premier League Azad Stadium Khrew. And somebody raised thank you, and then we got Adnan Shafi writes in, thank you brother. We got Ejaz Butt, we got Niyaz Ahmad Butt and others. Thank you for your love and support. Ejaz Butt writes in, thank you reading. Thanks for your love to Adnan Jamal Dar. Nazir 100 for the loss of 4. 7 overs remaining. 10 and over will mean 170. But I won't believe that 170 to me, in my opinion, and what I believe, and I want to exhibit that 170 and even 170 plus 175 180 isn't going to be above par, to be precise. But in the meantime, I would definitely love to point out one more thing, that is the game of glorious uncertainties can change its course, but on the other hand you need in excess of 180 and beyond that, and then we can say you got some runs to bowl at, not above par, to be precise, not a par score, because the dimensions are pretty small and it is easy to hit the ball out of the park. Thank you, Pervez. And it's over to you, Nazir, for next few balls to carry on. And then Nazim writes in, thank you Nazim for your love and support. Nazir, you may carry on. धन्यवाद। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आप एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं इस मैदान की अगर बात करें इन परिस्थितियों में, ताकि आपके गेंदबाज डिफेंड कर सके दूसरी पारी में, तो निश्चित तौर पे 180 190 का लक्ष्य अवश्य छूना चाहिए डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम। आखिरी 7 ओवर बचे हैं। डडू रेंजर्स कश्मीर 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नाबाद बल्लेबाज इरफान उल हक 21, हाजिक भट्ट 7-6 गेंदों से। और जेके स्पोर्ट्स टाइम में हर संभव प्रयास करता है बेहतर से बेहतर प्रसारण आप तक ले जाने की। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात करें, कश्मीर क्षेत्र की बात करें, एक से बढ़कर एक प्रतियोगिता इस समय बीच मैदान में चर्चा जारी रखेगा। अच्छी गेंद, इस बार गैप का इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी, लेकिन उस ऑलराउंडर ने गेंद को रोक लिया। 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ ही तिरछे बल्ले से इसको निकाला जरूर था। ऑफ स्टंप पर जैसे ही जगह मिली थी आड़े बैट को करते हुए वहां पर स्ट्रोक खेला था, लेकिन 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ ही स्कोर 101 4 विकेट के नुकसान पर। तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा क्रिकेट इस समय खेली जा रही है। हालांकि अगर इस प्रतियोगिता की बात करें, जो कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हर प्रयास किया जा रहा है और हर बेहतरीन से बेहतरीन सीधा प्रसारण लेकर के हमसे आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। एंजल्स ट्रॉफी कुलनगाम की बात करें, एक बहुत बेहतरीन प्रतियोगिता चल रही है और आने वाले समय में जेके स्पोर्ट्स टाइम वहां से भी सीधा प्रसारण लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी। बीसीएफ कश्मीर कप जहलम स्टेडियम खरीव जहलम स्टेडियम बारामूला में खेला जा रहा है। अगली गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप का इस्तेमाल, सीमा रेखा से बाहर। शीला का जस्ट बुखारा चौका, 105 पे 4।
13.2 के बाद। और लगातार मनोवर बात कर रहे थे कि प्रतियोगिताओं की बात जो कर रहे थे, अरे एंजल्स ट्रॉफी कोलनगाम की बात करें, एक बेहतरीन प्रतियोगिता, सफल आयोजन और इस समय वर्तमान स्थिति में चल रही है। तो आने वाले समय में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से वो सीधा प्रसारण भी आप तक का जरूर पहुंचेगा। और अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, BCF कश्मीर कप जो कि जहलम स्टेडियम बारामूला में टर्फ पे खेला जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वहां से भी सीधा प्रसारण आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल इस ओवर में अगली बार इस बार अच्छी गेंद आवश्यकता है कल्याण में खोजकर वहां पर इरफानुल हक ने निकाला, एक रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। पीछे खिलाड़ी सफाई के साथ कलेक्ट कर नहीं पाए, लेकिन दोनों बल्लेबाज एक रन तब तक का पूरा कर चुके थे। 106 पे 4, 13.3। मीर मोहम्मद वारिस हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। एम अकील जाहिद और आमिर डार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आजाद स्टेडियम ख्रू से आप तक पहुंचता हुआ। लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि अन्य लोग जुड़कर इस निर्णायक पहले सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। आप डिजिटल स्टार के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं, सेंड स्टार के बटन को दबाना ना भूलिएगा और आप डिजिटली हम तक पहुंच सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। मुनीब मनाफ 29 रन देकर के एक सफलता। ये गेंद इस बार स्टंप पर नीचे रहती, बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन दोहरे मन की स्थिति अंतिम समय में वहां पर हालांकि कहना चाहिए कि स्ट्रोक को लेने से कतराया और निश्चित तौर पर गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या और जैसे जैसे मुकाबला अंतिम चरण में जा रहा है, एक अच्छी खासी संख्या इस मुकाबले का आनंद ले रही है इस मैदान में। और ऐसे में मुनीब मनाफ जो कि सुपरस्टार पांपोर की ओर से गेंदबाजी का मोर्चा बने हुए हैं। ये गेंद इस बार गेंद को खेला, हालांकि जगह मिली थी, प्रयास किया वहां पर थोड़ी देर हवा में रहने के बाद गेंद हाजिक भट्ट ने स्ट्रोक खेला था, एक रन और 107 पे 4, 13.5। राजा एहतशाम हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैंपियंस कप चोगल। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत। चैंपियंस कप चोगल एक और बेहतरीन निःशुल्क प्रतियोगिता जो कि इस समय नॉर्थ कश्मीर में चल रही है। निश्चित तौर पे वहां से भी सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अपने चहीते व्यूअर्स तक, क्रिकेट जगत के समर्थकों तक का जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद अच्छा भाई। मीर मैक्रो भी इस मुकाबले का इस बार गेंद के आने का इंतजार, हवाई रास्ता और गेंद सीमा रेखा से बाहर, इरफानुल हक के बल्ले से निकलता हुआ यह दर्शनीय स्ट्रोक, जस्ट बोखारा छक्का आता हुआ 113 पे जा पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर पूरे, आखिरी 6 ओवर बचे हैं और मनोहर इस प्रकार की अब बल्लेबाजी की आवश्यकता है क्योंकि दमखम है इरफानुल हक और हाजिक भट्ट की अगर बात करें। इरफानुल हक जो कि इस समय ऊंचे कद के खिलाड़ी और अच्छी खासी बैकलिफ्ट के सहारे वो इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब प्रयास करना होगा क्योंकि विकेट का कोई महत्व नहीं रहेगा। आखिरी के 6 ओवर आने बाकी हैं, तो इन परिस्थितियों में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और दर्शक चाहते हैं भले ही परिणाम कुछ भी हो, एक संघर्षपूर्ण और मनोरंजन की स्थिति यहां पर दर्शकों को देखने को मिले, दर्शकों का मनोरंजन हो। यहां आए सभी दर्शक डैडू रेंजर्स कश्मीर के चाहते हैं कि एक विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिले। Because now they need to accelerate and they need to change their gears. 113 for 4, spoiling the figures on that occasion, and Irfanul Haq and he went for 36 of his quota. So for Munib Manaf, Irfanul Haq and Hazik Bhatt out to the center of Khrew Azad Stadium, and Shahid Siddiqui writes in that Manzoor Pando is still in the kitty. Mir Mohammad Akib, walaikum salam brother, and we got Majid Najjar and Ajaz Bhatt. Well, we have too many tournaments coming up, and my colleague earlier on thought it out that we have got 4 express rights in somebody. It is Soivon, it is Sajjad Bhatt, and we got a few other guys in the lineup and Akib Lone writes in a Khrew Premier League, best league of Kashmir, no doubt about that. It has been a wonderful league, but we can't rate that good, better and best. And commentator Ilyas Qadri writes in, thank you. And we have Malik Rafiq and Shahid Yunus, and on that occasion both the batters decide to settle for a single. It's 114 for the loss of 4. And commentator, walaikum salam brother, we are in over number 15, and my colleague throat out earlier on care. We have got Klangam Angeles Trophy, we got Champions Cup Chogal, and we got Kashmir Cup tournament there at Baramulla, and which is a wonderful initiative launched by and started by and commenced by BCF Baramulla Cricket Forum, and providing us that turf wicket, ideal cricket, 114 for 4. Rob Bashir and Irfanul Haq, is he in danger? Is he in danger? And Munib Manaf tried his level best, but is unable to pluck that turn ball. One bounce and into the wideish extra cover boundary for 4 for yet another Just Bukhara, and Skopro Pel to 118 for the loss of 4. But Irfanul Haq, he was in danger. He was in deep trouble, but it wasn't easy for Manaf. He's having a dwarfic body. He was unable to extend his arms up to that level, and it's 118 for 4. Roof goes, and Irfanul Haq catching that turn one-handed, and it's because of that
ball falling in no man's area. It didn't carry to the failure. What could have been soft dismissal, and he's still unbeaten and he's still breathing. 119, but this man, they need him out in the middle till the last ball. Mir Mohammad Aqib, one of the best championship from North Kashmir is Panditpura Premier League. Thank you. Then we get Danish Nazir, Zan and Ilyas and Sahil. And well, Mir Mohammad Aqib wants to point out that tournament, and Zan was talking about RCL Ramal Cricket League was the best this time around, and we are going to brought you the live broadcast of winter edition of RCL, this time outside state, and that one way down the leg side wide it is. 120 for 4. Well, Nazir, now as per Haziq and Irfan is concerned, Irfan is trying to gear up. He's trying to change his gears because he knows very well that how important it is going to be if you have runs on the board. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस ओवर में आखिरी बार रऊफ चले, इस बार जगह मिली आप सबसे बाहर, लपेटा हवाई रास्ता, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये लगा जस्ट बुखारा चौका, और इस चौके के साथ ही स्कोर 124 पे जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 15वां ओवर पारी का चलता हुआ मोइनुल इस्लाम, आबिद लंगेट और फैसल इम्तियाज डार हमारे साथ बने हुए हैं। साकिब परे भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीर अहमद हमारे साथ बने हुए हैं राजौरी से, अपना प्यार और विचार देते आनंद ले रहे हैं मुकाबले का। सेमीफाइनल मुकाबला बीच मैदान में जगह मिली, खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी हैं, जब तक वे फील्ड करते 1 रन पूरा किया, निश्चित तौर पे 1 रन से संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज हाजिक और इरफान उल हक। 1 रन के साथ ही 125, 4 विकेट के नुकसान पर 14.5 के बाद आखिरी गेंद का आना बाकी। रऊफ बशीर 35 रन अब तक खर्च कर चुके हैं, काफी खर्चीले साबित होते हैं, हालांकि सफलता उन्हें नहीं मिली है। वसीम रजा को 2 सफलताएं मिली है और राशिद अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। जहांगीर जॉन, बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर भाई। ये माही नसीर और शोपा स्पोर्ट्स टाइम में इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और जस्ट बुखारा एक स्पॉन्सर और एक बेहतरीन रेस्टोरेंट जो कि स्पॉन्सर कर रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम को। अच्छी गेंद पिस्टम से बाहर, लपेटना चाहते थे, सफलता नहीं मिली और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। ओवर पूरा, 15 ओवर समाप्ति, 125 पे 4। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम। अंसर बट बिलाल हमारे साथ बने हुए हैं और इलियास कादरी भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इरफान उल हक और हाजिक बट की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। डडू रेंजर्स कश्मीर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित का 20 ओवर का कोटा और अब तक 15 ओवर में 125 रन बन चुके हैं। फरहान वानी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोपिया स्पोर्ट्स टाइम और सैम गुलबर्ग के साथ विकास जांगड़ा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। समर्थन देते रहिए, सहयोग देते रहिए, और आपके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम इसमें प्रयास करती है बेहतर से बेहतर प्रसारण लेकर के अपने चाहते व्यूअर्स तक का पहुंच सके, ताकि घर बैठकर वे आनंद ले सके क्रिकेट जगत के इन सभी मुकाबलों का। 125 पे 4 आखिरी के 5 ओवर। हसन हमारे साथ, आशिक सरकर और भट्ट अख्तर भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आखिरी के 5 ओवर में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। हाजिक भट्ट है सामने बाएं हाथ, एक बार फिर मोहम्मद मुदस्सिर के पास पहले गेंद, जगह मिली और गैप का खूबसूरत इस्तेमाल, गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये लगा एक और जस्ट मुकारा, इस बार हाजिक भट्ट के बल्ले से 15.1 के बाद 129 पे 4। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर मनवर 6 विकेट आपके हाथ में, तो यहाँ पे विकेट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जानते हैं अब जितने रन स्कोरबोर्ड पे लगेंगे वे कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होगा डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम के लिए। They need runs, and it's 129 for 4, and stand and deliver where that was a kind of a shot, and somebody writes a remarkable, and that was a remarkable shot. 129 for 4. It's 15.1 ball. Mudassir Molvi again goes and bows, and on that occasion unable to middle that one, but he wanted the second one, but sent back sensibly by Irfan ul Haq, and Irfan knows very well. 130 for 4 in over number 16. We are 2 balls down into the 16th over, and we got Dilip Pandita writes in that the tournament is excellent, and good to see such cricket, which took me before 1990s. And Mullah Muhammad and Aman Tazim and Rata Saqib and Mudassir is operating. Muhammad Mudassir 130 for the loss of 4, and Ilyas Qadri writes in comments for our proud commentator in Hindi, thank you. We got Khan Imran and others. 130 for the loss of 4 over number 16. We are in bowl number 3. 5 coming off 2 ball. Jahangir John writes in video quality. It's always been at its best, my dear brother. And it's 130 for the loss of 4. Rashidar and others. He goes Mohammad Mudassir Molvi again. Oh,
Yorking him up. What a delivery into the block hole. But look at Kufora based lad. Digs it out. Back to the bowler. He blocks that one at a straight to bowler for no run. But it's a dot ball. But credit goes to the batter. Where he digs that one out. Where he kept that one out. It's quite some achievement. And Shopian writes in something. And thank you for thank you again. And Wasim Zarga writes in thank you. And Soibani and Ashik and Mir Macro and Soibani. 130 for 4 after halfway down into the 6th. Oh, again another Yorker and 2 on the trot to be precise. And that's another good ball, and Irfan does well and digs it out towards the short mid on and escapes for a quick single. 131 for 4. And well done by Irfan Ulak to Lord Rexton. 2 on the trot and kept him at bay. And didn't give his wicket away. And it was better to get off strike. And he does well in style in getting off strike, because Mudassir Moulvi was hitting the right spot. He was on money, on target. And it was like that a situation you may say it. Like situation he does well getting off strike. He goes again to Haziq, and Haziq again playing it back to the bowler. And chance of a run out. Director, it will have to wait and watch. Shot for run out, and umpire says he's they're gonna fetch another run in the form of extras. Thank you, Shopian Sports Time. I want to meet you, Munawar. Thank you, dear brother, and you can meet me tomorrow if Almighty Allah bless me, people, and we shall be back. And then we can meet. It's all up to the Almighty Allah. May Almighty Allah prolong our lives, and we shall be live again tomorrow, and we can meet, inshallah, by the grace of mighty Lord. Manwani, it's 132 for the loss of 4 wickets. Nazir with a ball remains to be bowled in over number 16. 25 balls. How many runs? Dadoo Rangers should fetch from remaining 25 balls with 6 wickets in hand. देखिए प्रयास करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। ये गेंद मुदस्सिर की करारा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका आता हुआ। और ये है इरफान उल हक। इस प्रकार के बल्लेबाजी की आवश्यकता उनके बल्ले से, और आज उन्होंने दायित्व निभाया है। हालांकि अभी भी अंत तक खेलना होगा। 16 ओवर में 136 4 विकेट के नुकसान पर इस समय इरफान उल हक 42 पे नवाद है, मात्र 8 रन दूर अपने अर्धशतक ये पारी से। और हाजिर पर टीम के कप्तान से कप्तानी पर ही पारी, सूझबूझ तालमेल का परिचय, एक एंड पकड़े रखा है 15 गेंदों से 21 रन। और निश्चित तौर पे इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता डडू रेंजर्स कश्मीर 16 ओवर में 136 24 गेंदें बची हैं। और ऐसे में क्या बेहतरीन, लाजवाब, आकर्षक, विश्वसनीय प्रदर्शन देखने को मिला है इरफान उल हक का द्वारा। और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन और विशाल लक्ष्य की ओर धीरे धीरे से अग्रसर रहे। 24 गेंदें बची हैं, और अगर आप 24 गेंदों से 40-50 रन और जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे 180 190 अवश्य लक्ष्य होगा डडू रेंजर्स कश्मीर का। फिलहाल 17 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। शोपियान स्पोर्ट्स टाइम बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार भट्ट और ओवैस लोन भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 136 पे 4, 16 ओवर की समाप्ति के बाद इरफान उल हक 42 पे नवाद 28 गेंदों से, हाजिक भट्ट 21-15 गेंदों से, और शाहनवाज मीर हमारे साथ बने हुए हैं। क्रिकेट टाइटंस भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत यावर को एक बार फिर 18 रन देकर के कोई सफलता उनके खाते में नहीं गई है। और सामने होंगे हाजिक भट्ट 21 पे नवाद। चले यावर, पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद वापस अंपायर अंतिम समय में उसको खेला। 1 रन पूरा कर रहे हैं मुदस्सिर उस ओवर जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन और अपने छोड़ बदल लिए, स्ट्राइक मिलती हुई इरफान उल हक को जो 42 पे नाबाद है। 137 बॉय मीर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीर सैफ भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मीर बुरहान के साथ वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर जॉन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बेहतरीन और कहना चाहिए नॉर्थ कश्मीर की शान, अंपायरिंग पैनल में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ आता है। और कहीं ना कहीं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दानिश नजीर, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिद शमीम, अमन वानी और इशफाक मुगल भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। 137 पे 4, 16.1 गेंदबाजी यावर के हाथ। इरफान उल हक 42 पे सामना करने के लिए तैयार। बल्ला पहले से हवा में, ये गेंद और इस बार गति में परिवर्तन, प्रहार किया, सफलता मिली नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉट गेंद 137 4 विकेट के नुकसान पर 16.2। इरफान उल हक 42 पे नाबाद है। 29 गेंदों से 8 रन दूर अपने अर्धशतक से। और देखना है किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे जॉन परे। दानिश नजीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शेख अबरार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर अहमद मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। इस सेमीफाइनल निर्णायक कांटे की टक्कर के मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। पहली पारी समय चल रही है। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्टार पांपोर के विरुद्ध।
शॉपिंग स्पोर्ट्स टाइम बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन नसीर ये गेंद और बाहर, हालांकि बल्ला छूट गया था एक हाथ से स्ट्रोक खेला, करारा स्ट्रोक गिरते हुए वहां पर सबब से मुनीब मनाफ है, लेकिन तब तक 2 रन और खाते में जुड़ते हुए इरफानुल हक के उनका व्यक्तिगत योग 44, कुल योग 139 पे 4, 16.3 के बाद रात रियाज, जहांगीर जॉन, सईद हिलाल भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जॉन परे बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप डिजिटल स्टार के जरिए भी जेके स्पोर्ट्स टाइम को सम्मानित कर सकते हैं। सेंड स्टार के बटन को दबाना ना भूलिएगा। यावर बॉलिंग रनअप उनका अच्छा खासा, रफ्तार उनके पास, लेकिन रफ्तार का किया प्रयोग, गेंद को दी हवाई यात्रा और निकल गई स्टेडियम से बाहर। अंपायर का निर्देश 6 रनों का बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन और 6 रनों के साथ इरफानुल हक का अर्धशतक पूरा होता हुआ मात्र 31 गेंदों से 145 पे 4। लाजवाब, विश्वसनीय, आकर्षक, निःशुल्क प्रदर्शन इरफानुल हक का। Quite some achievement. 50 comes up in style, getting there. 145 for 4. But look at that, an extension of arms. What a shot, generating a lot of pace. What a man, using the long handle to perfection. Next ball. Oh, change of pace, and will this run down to the boundary? Big chase on for the fielder, but it evades him down to the boundary for 4, and that's a good shot. Thank you, Boymir, for your lance ball. But Nazir, he was for a while bowler thought that I might be getting away with it, but unfortunately it still finds the boundary. Just Bukhara coming over Bilal Beaver's way. It's 149 for the loss of 4. But look at Irfanul Haq, and now he's gonna prosper with the passage of time, and he's gonna take his side to some sort of respectability. 149, one shave. Teams 150. Dadoo Rangers, Kashmir. DRK out in the middle. Here goes Yaba to Irfanul Haq, and Irfan stepping too much leg side and guiding it straight to offside area. There is a protection. Before he could return the ball, the two batters had time in the ball to complete that run with ease, with authority. 150 comes up. It's the third 50. It took a lot of time to DRK to bring up that third 50, but still they managed to get there in time. 150 for 4 with 3 overs remaining, 18 balls remaining, 6 wickets in hand. I think they should go for the all out from here on. They should try to hit each and every ball out of the park, because wickets would hardly matter at this crucial juncture. Majority of bowlers should fly into the orbit and out of the center. बिल्कुल, अब प्रयास यही होगा, क्योंकि संकेत भी ड्रेसिंग रूम से यही आया होगा इरफानुल हक और आजिम भट्ट के लिए कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। जहांगीर जॉन, फैसल, दानिश नजीर, बहुत बहुत धन्यवाद। सीलू बेहरा भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। अहमद बिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद। रातर रजाक के साथ न्यूयॉर्क की शुरुआत, पहली गेंद मुदस्सिर की इस बार जगह मिली, ऊपरी सिरा, हवाई रास्ता और गेंद वहां पर लपक ली क्षेत्र रक्षक ने। इरफानुल हक की पारी का अंत होता हुआ और 5वें विकेट के रूप में 17.1, 150 पे 5वां विकेट। इरफानुल हक आउट होकर पवेलियन लौटते हैं निराशाजनक कदमों के साथ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पारी ऐसे समय में जबकि टीम की नैया डूबी हुई थी। संकट की स्थिति, संकट से आपकी टीम को न सिर्फ निकाला बल्कि एक सम्मानजनक लक्ष्य तक ले जाने में मुख्य तौर पर उनका एक बेहतरीन योगदान रहा इरफानुल हक का। 150 पे 5, 17.1 और कुल मिलाकर दानिश नजीर, हुसैफ इब्ने अशरफ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। साहिल एजाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना समर्थन देने के लिए, और अपना सहयोग और समर्थन देते रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम को इसी प्रकार से, और बेहतर से बेहतर सीधा प्रसारण आपकी सेवा में लेकर के हमें शाम उपस्थित। घेरे में खड़ी इस समय सुपरस्टार पांपोर की टीम। ये देखते हुए कि एक दिग्गज बल्लेबाज लेकिन उन परिस्थितियों में अपना कार्य कर चुके थे और अंत थे उनका विकेट अवश्य यहां पर मिला गेंदबाज को, सुपरस्टार पांपोर की टीम को, लेकिन अपना कार्य कर चुके थे। 150 पे 5, 17.1 के बाद और मंजूर आए हैं नए बल्लेबाज। देखना है वे किस प्रकार से अब यहां से बल्लेबाजी करेंगे। एक और दिग्गज बल्लेबाज जैन, क्रिकेट टाइटंस फयाज हारून, मुदस्सिर हुसैन के साथ साहिल भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और मंसूर डार यानी कि मंसूर पांडो के नाम से लोकप्रिय, और एक और धाकड़ बल्लेबाज। गेंदें कुल मिलाकर 5 इस ओवर की, और उसके बाद 12 गेंदें, 17 गेंदें बची हैं, तो कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पे यहाँ पे दर्शक चाहते हैं, काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे चाहते व्यूअर्स भी ये प्रतीक्षा कर रहे थे मनपेड़ों का आक्रमण होकर इस पे वो मैदान में आए, और आज वे इस समय मैदान में पहुंच गए। तौसीफ मंजूर भट्ट, धन्यवाद तौसीफ भाई।
और यासिर शेख वसीम भी इस मुकाबले का आनंद दे रहे हैं। धन्यवाद शेख वसीम। गुलजार कश्मीरी के साथ नए ओवर की शुरुआत हो चली है। दूसरी गेंद पांडो के लिए, पहले ही गेंद सीधे स्ट्रोक हाथ में खेल दिया और मनपोड़ा का काम तमाम। पहली गेंद पर 0 पे आउट होकर पवेलियन लौटे। 14 विकेट गिरता हुआ 17.2 के बाद 150 पे 6। ये है लेखा जोखा। राशिद शाह धन्यवाद और इजाज भी हमारे साथ, बट शौकत के साथ सालिक वानी और मेहदी मुश्ताक हमारे साथ बने हुए इशफाक वानी के साथ। तो कुल मिलाकर मन पांडो आज कुछ कर नहीं पाए, मात्र एक गेंद का सामना किया। पहली गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, उस और खिलाड़ी थे तैनात, उन्होंने लपक लिया और मन पांडो को किया चलता। 6 विकेट के रूप में डाडू रेंजर्स कश्मीर 150 पीछे 17.2 के बाद मनावा। Situation demanded, and he was trying to live up to his expectations today, and he was just trying to stand up quite a bit. But Mudassir Molvi getting rid of Manzoor Pando. It's 6 down now, and now I think Dadoo Rangers should try to bat out their allotted quota of 20 overs. Now again, this is cricket. It can be harsh on a given day. You can't rule out the fact that cricket can change its class, Nazir. It can be bad, it can be worse, it can be worsening on a given day, and it can be best, better, it can be good. You can rate in all those forms, but at this crucial juncture, Pando gone for naught, gone for golden duck, and courtesy Mohammad Mudassir among the wickets again. It's 2 to him up 20. He has conceded 20 so far, and Adilwani walks into the centre. And we'll have to wait and watch how this man is going to go after, because they need runs from here on, and they're in desperate need of runs as per Dadoo Rangers Kashmir are concerned. We'll have to wait and watch, and it is Gawar to be precise. Gawar Rashid Bahubali walks into the centre. Won't be easy to hit Mudassir out of the park, but we'll have to wait and watch. Here goes Mudassir, and he tends to hit each and every ball. Shot for catch there, but he says it's a bounce ball, so no harm done. And Sajjad Sultan was just trying to put pressure on the umpire, and he was trying to test his nerves, but umpire says straight away, shakes his head in disapproval, says not out in bold lattice, and loud and clear that it is not out. It's 150 for 6. Bahubali on strike, but Mudassir tends to bowl into the roots time and again, and Jawed Mukhtar had a pivotal role played by. And thank you for your loss, and sport Javed Mukhtar sir for your loss. Oh, knocked him over, cross-sold him, cleaned him up, bamboozled. It's wicket number 2 in this over to this man. And there goes Gawar Rashid. No feet movement, no footwork, and a negligible feet movement, but credit goes to the bowling side. Nazir again bouncing back in style, in chipping in with 3 wickets at the crucial fag end of an innings where they need runs as per the batting team is concerned, but the bowlers need to display that character and to keep the batting set under check till the last very ball. But it is now 7 down. Now they're running short of resources as per Dadoo Rangers Kashmir are concerned, and who knows, it can be harsh now for their batters to bat out, but credit goes to Mudassir Molvi, and he has picked up 3rd, and just conceding away 21. But look at this team, Super Star Pampore. They're really on cloud 9 at this crucial juncture. They are in ascendancy. They're reaping the harvest, and they're keeping the Dadoo Rangers Kashmir under check and at bay. And writes in something, and it is Rata Razak and myself Manawat Tanveer in English, and I got my colleague Sheikh Nazir next to me in Hindi here. 150 for 7. Thank you, Mudassir. So like that. Walaikum salam. It's 150 for 7. Nazir now 3 wickets in hand. Hazik and whosoever walks in should understand that we have to bat out the next 14 balls at any cost, because you can't afford 1 more wicket here. That will mean you will be on a losing end to large extent, because you're going to lose that initiative, and it will be early to say that that this match is going to go this way or other way. But cricket, to large extent, you need runs on the board. At least when you're batting first, you need runs on the board to bowl in the next innings to defend that. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सिकंदर आए हैं नए बल्लेबाज, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। हाजिक टीम के कप्तान नाबाद है 22 पे, 150 पे 5 और अब 150 पे 7। ये है लेखा जोखा। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और अनिश्चितताएं समय बीच मैदान में करते हुए सिकंदर सामना करने के लिए तैयार। मोहम्मद मुदस्सिर मौलवी के नाम से लोकप्रिय, रजाक शाब
साहब कश्मीरी के साथ डार इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। बट शौकत भी हमारे साथ रातर रजाक के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले, और डिजिटल स्टार के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। रातर रजाक का बहुत बहुत धन्यवाद। चले मुदस्सिर, सिकंदर के लिए पहली गेंद, बल्ला चलाया, दो खिलाड़ियों के बीच में से उस खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, हाजिर बट बना किया और निश्चित तौर पे एक ही रन मिलेगा। खाता खुला वहां पर सिकंदर का। कुल योग 151 पे 7, 17.5 के बाद आखिरी गेंद का आना बाकी। 18वां ओवर पहली पारी का निर्धारित 20 ओवर का कोट। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम 151 पे 7 और निश्चित तौर पे बेहतरीन वापसी। इन डेथ ओवर्स में क्या कमाल की गेंदबाजी की है वहां पर मुदस्सिर ने, लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन। और अब तक का 3 सफलताएं उनके खाते में, मात्र 22 रन देकर के सफल गेंदबाज मोहम्मद शफी हमारे साथ बने हुए हैं। रातर रजाक और अल्ताफुल इस्लाम भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, ऑप्शन पर जगह मिली, निकाला, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा के अंदर और निश्चित तौर पे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। फील्ड करने का प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। चौके के साथ ही ओवर हुआ पूरा। 18 ओवर 155 पे 7। डडू रेंजर्स कश्मीर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में। बॉय मीर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए, और इसी प्रकार से अपना समर्थन, सहयोग, प्यार, विचार देते रहिए। आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, और यदि आप चाहे तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम को डिजिटल स्टार के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। शेख इम्तियाज हमारे साथ बने हुए हैं। रातर रजाक, बट आहिल और नागबेन तस्रार, कुछ इस प्रकार का ये नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बट आहिल के साथ साहिब और रातर रजाक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 155 पे 7, आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है, और इन 2 ओवर में कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। रजाक रातर मुबशर के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मीर जुहिल भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रऊफुल इस्लाम और किफायत भी हमारे साथ बने हुए हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आजाद स्टेडियम ख्रू से। ख्रू प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत सफल प्रतियोगिता, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इस समय बीच मैदान में और पहली पारी डडू रेंजर्स कश्मीर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। 18 ओवर की पारी हो चुकी है। 155 7 विकेट के नुकसान पर हाजिक 26 और सिकंदर 1 सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप पर पूरी तरह से स्टंप्स को कवर किया। 1 रन गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। थ्रो किया लेकिन तब तक सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे। 2 रन सिकंदर के खाते में। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में तालमेल बेहतरीन और सूझबूझ का परिचय देते हुए 2 रनों के साथ ही 157 पे 7। 18.1 के बाद बशीर अहमद, जैन किफायत, रातर रजाक और तरसार 20 मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आकाश बांडे, जहांगीर जॉन, शेख इरशाद और रातर रजाक हमारे साथ बने हुए मोहम्मद शफी के साथ। एक बार फिर रऊफ चले, इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, हवाई रास्ता, साइड स्क्रीन की और गेंद सीमा रेखा से बाहर। सिकंदर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और इस बार सिकंदर बने मुकद्दर के सिकंदर, और निश्चित तौर पे भाग्य ने साथ दिया, चौका मिलता हुआ। 161 पे 7। 18.2 के बाद रातर रजाक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यावर के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मीर यामीन भी हमारे साथ बने हुए हैं और 161 पहुंचा दिया। 7 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर का स्कोर। 19वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी रऊफ बशीर के पास। 41 रन महंगे साबित हुए हैं, विकेट उनको मिले नहीं है। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया सिकंदर ने। 1 रन पूरा कर रहे हैं। अच्छी तौड़ विकेट के बीच फील्ड कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 162 पे 7। 18.3। आबिद तांत्रे, बहुत बहुत धन्यवाद आबिद भाई। शेख सलार भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जहांगीर जॉन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ख्रू से सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। लाइक और शेयर करना ना भूले। डिजिटल स्टार के जरिए सेंड स्टार का बटन दबाना ना भूलिएगा। इस पर पटकने की कोशिश, कंधे का इस्तेमाल, हालांकि बल्ला जरूर चलाया था वहां पर हाजिक भट्ट ने, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 162 पे 7। 18.4। 2 गेंदें बची हैं। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम, रातर रजाक और बिलाल अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। वर्धमान रन गति 8.76 और प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें 175। इस बार अच्छी गेंद मिले स्टंप पर, अंतिम समय में निकाला उसको, उस और खिलाड़ी उनने गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन बल्लेबाज को रोक नहीं पाए 1 रन लेने से। जेके टीम की अगर बात करें
सईद अल मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी तक जम्मू कश्मीर की टीम ने 12 ओवर में 135 रन बना लिए हैं, मात्र एक विकेट खोकर। और इस समय बीच मैदान में शुभम खजूरिया जो कि आउट होकर पवेलियन लौट के 85 रन बनाए हैं। और इस बार अच्छी गेंद यहाँ पे मिड स्टंप पे आती हुई गेंद, इसको निकाला, हालांकि एक रन पूरा कर रहे हैं, एक रन और मिलेगा 164। तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, शुभम खजूरिया आउट होकर पवेलियन लौट के 85 रन बनाए, 39 गेंदों से 11 चौके 4 छक्के। और इस समय बीच मैदान में जतिन वाधवान जो कि नाबाद हैं 48 पे 32 गेंदों से 6 चौके 1 छक्का और उनका साथ दे रहे हैं शुभम सिंह पोंधेर जो कि टीम के कप्तान है जम्मू कश्मीर के, और वे नाबाद हैं 1 पे। तो कुल मिलाकर 135 12 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी संकेत, अच्छी सूचना। जम्मू कश्मीर की टीम जो इस समय सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, हालांकि वे मेघालय से हार चुके हैं पहले मुकाबले में, और ऐसे में आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो बेहतरीन प्रदर्शन उनका देखने को मिले। फिलहाल वर्तमान में स्थिति 19 ओवर पूरे, ख्रू प्रीमियर लीग का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला 164 पे 7। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम वर्तमान रनगति 8.63 और इसी रनगति से 173, लेकिन पारी का आखिरी ओवर हाजिक पाक 27, सिकंदर 9। तो देखना है कितने रन बटोरेंगे आखिरी ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी यावर के पास होगी संभवतः, अथवा रूफ के पास। जी हाँ, यावर होंगे 44 रन, रूफ ने खर्चे है, कोई सफलता नहीं मिली है। इलेक्ट्रिक सब डिवीजन त्राल इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। फिरदौस अहमद, आकाश बांडे, फैसल राथर रजाक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम, बेहतरीन से बेहतरीन प्रसारण और आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्रिकेट आप के लिए लेकर के आ रहा है। हालांकि ख्रू प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो कल खेला जाना है उसका भी सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल पारी का आखिरी ओवर, पहली गेंद, इस बार सिकंदर प्रहार किया ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ, गेंद छकाते हुए बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बाबा इरफान और हादी दानिशदार, इरशाद, मेहरान, रफीक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 164 पे 7, 19.1, सिकंदर 9, हाजिक पर 27, लेकिन हाजिक इस समय नाश्ता की छोड़ पे है। सिकंदर प्रयास कर रहे हैं, देखना है क्या सफलता मिलेगी, कितने रन बटोरेंगे। 5 गेंदें बची हैं। दूसरी गेंद, इस बार गति में परिवर्तन भाप लिया था, फिर सबसे आती हुई गेंद को लपेटा, हवाई रास्ता, गेंद हालांकि संतुलित कर रहे थे मुनिबड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। गेंद सीधे स्टेडियम से जा बाहर, 6 रनों का इशारा। तो सिकंदर के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का 15वें पे पहुंच गए। कुल हो गए 170 पे 7, 19.2। फरहाद असलम हमारे साथ बने हुए हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। आकाश बांडे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं आबेदार और फैसल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, बने रहिए हमारे साथ, आनंद लीजिए इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले का। और दर्शक अच्छे खासी मुद्रा में इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इस बार फिर सिकंदर ने खेला, लेकिन ताकत नहीं दे पाए। हालांकि खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद वही अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद वह पास में लौट थोड़ी देर हवा में रहने के बाद, लेकिन एक रन मिल गया सिकंदर को। 171 पे 7, 19.3, गेंदें बची हैं 3, सिकंदर 16, हाजिक बट 27 और कुल योग 171। 7 विकेट के नुकसान पर मनान यासिर हमारे साथ बने हुए हैं और आकाश बांडे लगातार इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। आखिरी 3 गेंदें 171 पे 7, 171 for 7. We are in over number 20. Last over is in progress, halfway down into the last over. It's 171 for 7, and Haziq Butt is on strike, the captain of the team, leading up front. He's unbeaten on 27 of 18 balls. Ball for that run. What a shot! Excellent shot over extra cover, punched away. 6 more and half a dozen coming Dadoo Rangers way. And Nazir, some substantial figures after the completion of 19.4 balls to Lord Rexton. And with that 6 brought to you by Just Bukhara, but Haziq Butt propelled to 33 of 19 balls and his team total and the tally propelled to 177. Interesting figures, 177 for 7 in over number 20. Ball number 5 coming up on strike is Haziq Butt, the captain. 2 balls remaining and they need at least 7 odd runs, or beyond that they should try to fetch some odd runs from remaining 2 balls. We'll have to wait and watch. Dadoo Rangers Kashmir 177. Somebody writes in something. It is Lone Bashart. He's a wonderful viewer of JK Sports Time, I think so. But he writes in something. And in the meantime, here goes Yabar. Oh, that run in the air. Will this be a catch? No, doesn't. Ball falling in no man's area. They're going back for the second chance of a run out. But that late shy comes in, allowing the 2 batters to be back for the second. And that brace
propelled the total to 179. In Nazir at halfway stage, I told you that if they manage to get past 170, they might be having a kind of psychological advantage, and they might be having something to bowl at, but it won't be above par, to be precise, because as per the dimensions are concerned, given the conditions, belter of a track, it is full of runs, quite white wall, benign track. You need runs in excess of 190 beyond that, but you still have something to bowl at. Now at one stage they were down and out, now they have runs on the board. 179 for 7. Last ball, and Haziq swing and a miss, and over comes to an end. Inning comes to an end, curtains down, inning comes to an end. 179 for 7, and we shall be back with the chase. It will be Super Star Pampore chasing 180 from their latitude 20s with 10 wickets in hand. We shall be back for that wonderful and prolific show with the bat from Super Star Pampore. Join us back for the chase in a while. Till then, take care of yours. Assalamu alaikum wa rahmatullah.